Good evening, everyone. A very happy new year to all of you. I hope you're having a great time. Now, I would like to welcome you all to the World Cybersecurity Forum session on investigating cybercrime, a complete guide. My name is Megha Ahuja, and I'm a practicing advocate at the Supreme Court of India and also the program head of Department of Cyber Affairs at World Cybersecurity Forum. And I will be serving as your moderator today. This session has been organized by World Cybersecurity Forum to enhance your knowledge regarding investigation of cybercrimes. As you all know, World Cybersecurity Forum is a globally prestigious cyber consultancy and web community that tends to create cyber awareness in regard to various internet issues and goes as a wellspring of techno-legal information for professionals, students, teenagers, and middle-aged civilians around the globe. As a dedicated cybersecurity platform, World Cybersecurity Forum has been catering unbiased information to professionals on countless security challenges that they come across every day. The cybercrime investigation is the process of investigating, analyzing, and recovering critical forensics digital data from the networks involved in the attack, which could be the internet or the local network, in order to identify the attacker. Many special provisions for detecting cybercrimes have been included in the Information Technology Act 2000 and various information technology rules also. At today's session, we will try to make you understand the tools and techniques for cybercrime investigations and the regulations enacted for the same. Talking about the speaker, Mr. Deepak Kumar, popularly known as D3, is a senior digital forensic and cyber intelligence consultant. He has been working on several consulting and investigating engagements with organizations such as academia, corporates, international law enforcement organization, government sectors, and PSUs. He is presently engaged with Indian government projects related to security operation centers, cyber threat intelligence coordination, and capacity building for cybercrime and digital forensics domains. He holds professional international certification skills in area of operational and cybersecurity, digital forensics, social media intelligence, incident and response, blockchain, industrial control systems, fraud detection, counter-terrorism and national security, etc. He is presently chair member in National Cyber Safety and Security Standards India and also an active member of the International Cyber Threat Task Force. He has been awarded with various industry recognized certifications, and he has also received several appreciations from senior officials from ministries, law enforcement, defense organizations, academia, and media as well. Now, without any further delay, I would like to call Mr. Deepak Kumar to take the session forward. Thank you, Megha. Thank you so much for the lovely introduction. And thank you, World Cyber Summit, Cyber Security Forum, WCCSF. Thank you, Paki, as well. Thank you, Akash, who actually coordinated me through LinkedIn and they just initiated for this session. Session is really important today. Session is on about cyber security, cybercrime investigation and all. But I would say one thing like during this session, I will more focusing about the cybercrime investigation practices and how other things are required like forensics, cyber intelligence, cyber law, legal part, and what coordination is required for gathering as much as information intelligence for the same thing. Second, let me share my screen so that will make more sense. Can you see my screen? Yes, it is visible. Okay, so first of all, I mean, the session is, the thing which I'm going to explain or express over here is that it's completely from the open source information that is not linked up with my present or past employer, basically. And experiences always comes when you practically working with some real case or some incidents which linked with cyber, or you can say information security, basically. If you have any query or any concern, you may connect with me by the end of the session during this Q&A, or maybe the detail which I'm going to provide in this one. So starting with a very well-known or very famous quote that is, once the document have been posted online, the journey is of the bottle. It's very old and very common.
anyways, you there can is some. stop your screen and share it again so that this will be gone. And please, anybody do not interrupt with the screen share, please. It's a request. Okay, no problem. So maybe there's some issue from the users. They may try some options like. Yeah. Anyway, so this is the quote, and it is a very important thing for the person who actually dealing with the digital part or cyber part. Like in general, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हमें जितनी एविडेंस मिल सकती है किसी भी क्राइम को लेकर के हम उसको प्रॉपरली प्रूव कर सकें, उसको हम लगा सकें. Similarly for cyber domain as well, the thing which we are trying to focus, which we trying to leak on internet or writing something on social media, that is sometimes that is really helpful for the things. And that is, you can link up with various cases, ongoing cases, or you can say any incident which is linked with cyber security or cyber crime basically. So now the question comes in mind like what are the areas, how generally the question comes like कोई भी law enforcement agencies है या कोई भी intel agencies है या जो भी cyber crime branches हैं या जो भी name हम define करते हैं users के citizen के माध्यम से basically how they're initiating, how generally they catch their, I mean, fraudsters or criminals through internet or through their processes basically. क्या करते हैं, कैसे information gathering करते हैं, वो क्या indicators होते हैं. So that is again the big subject, because as we know that due to this COVID situation, we are completely depending on this, digital part, computer, mobile, laptops and all. Work from home culture was there, and कुछ organizations हैं जो still ऑफिस जाके काम कर रही हैं. बट जो एक रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ है, जैसे अभी मैं खुद इस मीडियम से कनेक्टेड हूँ बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. सो अगेन देयर इज द रोल दिस इंटरनेट, दिस डिजिटल इज, आई मीन, काफी ज्यादा हो चुका है. और जो लोग जानकार नहीं है, मे बी, सो काफी इंसिडेंट्स भी हुए हैं नो डाउट. जूम प्लेटफॉर्म में आपने काफी न्यूज भी सुनी होगी. तो कहीं ना कहीं पे ऐसी चीजें हैं जो लोगों को जोड़ती है डिजिटली. सो डिजिटल इज रियली a need of the hour basically, but there are certain consequences also there. Negative चीजें भी हो सकती हैं. So that is one. So you can see some cases which we can see from the real perspective which is happening nowadays, and very common thing. The purpose for showing this thing is not only for the awareness perspective, but it is also important to know कि कोई भी youth आप देखो आज के जनरेशन में कैसे इन चीजों पे हो रहा है. एंड द यूथ्स आर, आई मीन, मेजरली और कॉमनली, आई मीन, इनटू दिस वन. These are some news. You can see youth held for making fake Instagram account. Two youth are basically from Bengaluru arrested for blackmailing and extortion cases. And you can see the age group basically. These are 20 years and these, I mean, they alleged profiles, but again, how they got that is again a big question. Youth held for harassing girls online. And Rajkot cybercrime cell naps 2 youth exploiting teenage girls. Similarly, youth held for impersonating as manager of Tollywood singer. So while doing a normal Google or normal search on internet itself, you'll get a various information pertaining to users जिनकी एज ग्रुप 17, 18 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक मैक्सिमम होती है, जो इन सब चीजों पे वर्कआउट करते हैं. प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये एज ग्रुप इसमें कैसे इन्होंने क्राइम किया. आई मीन देयर आर वेरियस थिंग. यू कैन सी अ लेटेस्ट एंड वेरी, आई मीन, सेंसेशनल थिंग लाइक बुली बाई वाला भी चल रहा है, काफी तगड़ा चल रहा है. कैसे बंदों को पकड़ा गया, कैसे उन्हें नैप किया गया, कहाँ से उन्होंने ट्विटर पे रीशेयरिंग की, किस तरह से बिश्नोई को पकड़ा. सो दीज आर थिंग्स व्हिच इज देयर. बट अगेन व्हेन यू सी how they napped down basically, what indicator was there, what email id was there, what profile id, what GitHub URL was there, and how MLAT works basically when seeking an information from international or intermediaries or something. So these are important. But वो क्या exactly data मांगना है, किस time frame का मांगना है, जो data हमें मिलता है LEA के माध्यम से, exactly how we have to study and how we have to interpret, and we can use that things for our initiation or investigation perspective. So that should be accepted by court of law. So these are things. So these are some examples, some news articles which is clearly mentioned. And when you see the face, मतलब जितना देखोगे उतना ज्यादा आपको कंटेंट मिल जाएगा. But when you see the age group and I mean the person's personality, so that is again the call center fraud. You can see the youths, you can see the personalities. कभी आपको लगे कभी नहीं कि ऐसे बंदे हैं जो इन चीजों में फंस चुके हैं.
from Delhi itself, I mean, there are several Intel units itself in India, state subject perspective. So you can see like these people, they don't know, or they may know, they are aware with these things कि हाँ हम कुछ crime कर रहे हैं, और due to this COVID situation jobs भी नहीं है, no doubt अपने skills को misuse कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं. So you can see one incident which is talking about creation of a fake website, this user, and again this person is a good, and he was a BC, and he having knowledge of web designing. एंड वो कहते नहीं इंडिया में कोई भी वेबसाइट बना लो और किसी मोदी जी की फोटो लगा लो और यू कैन जस्ट डू वेरियस थिंग्स, स्कैम्स एंड ऑल, because maximum people, they don't know about these things. So they create any narrative, they use that narrative, they manipulate things and create certain things, जैसे PM योजना को लेकर के, डिजिटल थिंग्स को लेकर के, किसी भी स्कीम को लेकर के वायरल चीजें करना, तो ये भी एक प्रकार की है जो मतलब एक एंगल क्रिएट करती हैं. फेक न्यूज स्प्रेड करना, अगेन अ बिग सब्जेक्ट. Showing this particular slide, that is a very simple thing. A person, he created a fake website and went through any domain hosting provider. Could be GoDaddy, it could be BigRock, it could be anything. The perspective is what? Like using a logo, you hosting something on internet, and maybe that content hosted in US or GoDaddy, or that is that intermediary not comes under Indian jurisdiction, but again they hosted, they took our data, and जो user है, he having the control panel, cPanel, he or she can able to access the content of the website for updation or for deletion of something. And similarly he uploads certain content कि हमें ये hiring है, download this form, just pay 200 rupees and this is this. So कोई user इस तरह रिक्रूटमेंट में जाएगा गूगल पे, नॉर्मल मोबाइल पे सर्च करके, उसे नहीं मालूम होती ऑथेंटिसिटी क्या है वेबसाइट की, बस उसे ये मालूम है कि हाँ रेलवे की फोटो है, रेलवे का लोगो है, कोई railway.com करके वेबसाइट है, .com, इवन ही नॉट अवेयर वरी विथ .gov.in है या फिर ऐसा कुछ करके. सो क्रिएशन ऑफ समथिंग, 200 रुपए लेना किसी चीज को लेकर के, और इस 200 रुपए या 300 रुपए जो फॉर्म का लेना, इसके बाद यह ऑफ कोर्स होना कुछ नहीं है. तो यूजर जब पे करता है, विक्टिम जब इस तरह की चीजें पे करता है वेबसाइट के माध्यम से, तो ही डू सम पेमेंट, and while doing some payment he use some sort of financial link, there is some financial linkages, it could be UPI, it could be a payment from your account to some account. So when you make some transaction from one account to second account, so there is some transaction IDs, these are the indicators. So here a website cPanel, number of time the developer basically went to, I mean, manage the website, so he will try to do what he maybe use various time login, काफी कुछ उसने किया होगा. उसके बाद जब उसने पैसे लिए होंगे यूजर से बेसिकली, सो ही हैविंग सम UPI ID, सम फाइनेंशियल थिंग्स. सो मल्टीपल इंडिकेटर्स आर देयर टू find and to track down exactly that thing belongs to which person. So somehow these are the some fundamental things which helps law enforcement LEAs to nab down a perpetrator, or that, I mean, the cyber criminals basically. So यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? पहली चीज ये है कि nowadays people doing their believe in ethical hackers, ethical hacking and all, they Google, they do some sort of certification, they study some content normally, and they forget about the fundamental things and all. So I'm not saying that कि fundamental strong करो फिर अच्छे से hack करो. The thing is what कि understand the reality of the things, how any LEAs or how these things can work, and while violating these things they may create a big havoc or big situation for the users. Online frauds are very common. अभी नोटिस किया होगा कि इस समय पिछले 1 2 4 6 7 8 महीने से 2 साल कह सकते हो आप, कि अमेजन से या फ्लिपकार्ट से या अमूल इंडिया से काफी ज्यादा SMS आते हैं कि आपका जॉब वर्क फ्रॉम होम या मनी अर्निंग टाइप की चीजें होती है. उसमें एक URL होती है, व्हेन यू क्लिक दैट URL, directly a WhatsApp page will come, WhatsApp account will open, and normally there's a beautiful girl, a picture is there, he or she started chatting with that कि आपको पैसे earn करने हैं, आपको ये करना पड़ेगा. And so user do what? Yes, of course, ऑनलाइन बैठा है, उसे नहीं मालूम कि मैं किससे चैट कर रहा हूँ, उसे ये मालूम है कि हाँ मैं किसी से चैट कर रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं अगर मैं कुछ वर्कआउट करता हूँ. तो there are several incidents happen, and hell amount of money siphoned from persons to these fake fraudsters itself. So when you're while investigating those indicators, those UPI details or those financial linkages, we found that there are hell amount of money in lakhs, in CRs,
सो ये कार्टल काफी बड़ा होता है, इट्स नॉट लाइक दिस। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि when one indicator means suppose you have one number, fake number, and using that number you just go for report a cyber crime, trying to locate that number, trying to find that number belongs to whom. When we do requisition for SDR, subscriber detailed information, as well CDRs or maybe IPDRs as well, if any linkages is there. So we found that कि user कोई और है, use कोई और कर रहा है, location कहीं और की आ रही है, तो perpetrator exactly जो है, accused जो है, इसको conviction के लिए वो proof कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे कुछ pointers हैं जो forensics perspective या CTI perspective या other linkages perspective that may help. So process is same again. So things are there, fake websites are there, groupnaukri.com, CCs are there, call centers are there in this Uttam Nagar, Janakpuri, Noida, Gurgaon, काफी ज्यादा hub है यहाँ पे. Similarly for running fake things as well. You can see these are some news which helps, and we just for understanding perspective, like how these things are work. So now the question comes here, like it's not only cyber crime perspective, remember, it's also about cyber security incident. If you heard about patchwork, a very fresh news, you can Google, you can get to know what is patchwork, PATCHWORK. इस तरह की कुछ साइबर थ्रेट इंडिकेटर्स कह सकते हो, या साइबर थ्रेट कैंपेनर्स कह सकते हो, या एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी कह सकते हो जो साइबर क्राइम को इनिशिएट करती हैं। यह किसी कंट्री की हो सकती हैं जिनको हम कभी कभी नाम देते हैं APT, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स, या फिर फिन, या फिर कोई TI सीरीज दे देते हैं ताकि कंट्री में कन्फ्लिक्शंस ना हो, उनके जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी क्रिएट, मतलब प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। तो हमने एक नाम दे दिया APT10, APT14, APT13, द कोड नेम बेसिकली। हम डायरेक्टली किसी पे एलिगेशन नहीं लगा सकते कंट्री स्पेसिफिक पे, तो हमने ये कोड दे दिया। हमने इन कोड को स्टडी किया। कोड मतलब कोई अटैक अगर फॉरेन से इंडिया में होता है, तो या इंडिया से किसी और कंट्री में होता है, या किसी IP to IP होता है, सो इन दिस सिचुएशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द फंडामेंटल दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। हम IP की बात करते हैं क्योंकि मैं अगर आपसे कनेक्ट हूं तो मेरा सिर्फ एक ही मीडियम है, दैट इज बिकॉज द लैपटॉप विच आई एम यूजिंग, इस लैपटॉप में जो मैक जो वाईफाई है, उस वाईफाई में IP असाइन हुई है। IP बेसिकली जो मैंने घर पे वाईफाई लगा रखा है, वाईफाई पे जो मैंने डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, अकॉर्डिंगली आई गॉट वन IP, एंड दैट IP इज अ पब्लिक IP, बेसिकली स्टैटिक IP, नॉट स्टैटिक IP, यू कैन से इट्स अ IP विच इज यूज्ड बाय वन यूजर एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब ये IP इस टाइम पे सिर्फ मैं ही यूज कर रहा हूँ और कोई यूज नहीं कर रहा है। तो यह IP 2-3 घंटे बाद मे बी कंपनी के पर्सपेक्टिव में चेंज भी हो सकती है, नो डाउट। सो टाइम फ्रेम which IP is used by this user, so this is the thing. So question here, if any attack is happened or any cyber crime incident has been happened or happening something like that, तो वहां पे जो indicators हैं, जो IP है, जिसको हम बिल्कुल बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस होते हैं, उन पे फोकस करना जरूरी होता है। और IP बिलोंग्स कहाँ करती हैं, IP का ASN क्या है, IP किस ISP का है, किस सर्विस प्रोवाइडर का है, वो सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली कितने, मतलब things are there. Apart from IP, what are the other indicators which really help to find out for any crime? So I'll give one example in next and upcoming slide, where a big cyber crime or big cyber security incident, how they are initiated through single IP or single consent. So it could be anything. Before jumping with this, पहले तो सबसे मेन चीज ये है कि those who may aware with the mind map of cyber security or cyber crime, first of all, it is very big domain. And it's not like you can say ki I want to be expert into cyber security, I want to be, because it's a domain. You can see there are various governance, risk assessment, frame standards, frameworks, threat intelligence, security operations centers, career development, no doubt, and security architecture, legal part, everything is there. क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम किसी एक एरिया को स्टडी कर सकते हैं, किसी एक एरिया पे वर्कआउट कर सकते हैं, पर सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों पे लिंक होती हैं। So when you talk about cyber crime investigation, if any company का डेटा ब्रीच हुआ है, डेटा लीक हुआ है, तो वहां पे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं स्टडी करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि यह डेटा आपकी कंपनी से लीक हुआ है, तो आपकी कंपनी की पॉलिसीज क्या है, डेटा रिटेंशन, डेटा लीक, या BCPDR या ISO स्टैंडर्ड उन्होंने मेंशन कर रखा है, या एम्प्लॉय या चार्ज जो मैनुअल, मतलब सारी चीजें होती हैं। अगर यह चीजें किसी लॉ इन्फोर्समेंट या किसी लीगल बॉडी को नहीं मालूम है, तो व्हाट एग्जैक्टली दे कैन गेट, सो प्रूव दैट कि यस आपका कुछ ऐसा था नहीं, ये बैकअप पॉलिसी नहीं था, ये आउटडेटेड था, ये ऐसा था। सिमिलरली
टेक्निकली देखा जाए तो उस वेबसाइट पे कोई वीकनेस या वल्नरेबिलिटी लूप होल्स हो सकते हैं जिसको हैकर ने एक्सप्लॉइट करके अटैक किया है। तो उस संदर्भ में जब हम लॉग को स्टडी करते हैं तो हमें लॉग्स मालूम होने चाहिए। तो टेक्निकली ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि वी शुड नो कि एनी अटैकर हाउ ही और शी इंट्रूड इनटू देयर नेटवर्क, at what time frame, how they did exploitation. So when we read any indictment report or any international perspective of reports, you'll get to know कि हैकर ने इस तारीख को इस सर्वर पे अटैक किया, इस आईपी से अटैक किया, फिर हैकर ने आईपी के बाद इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जंप किया एंड दे डिड व्हाट, इस लैटरल मूवमेंट किया या पाइवोटिंग किया, उसने क्रेडेंशियल्स को डंप किए, फिर उसने एक रैंसमवेयर बैकडोर छोड़ दिया, फिर रैंसमवेयर डिप्लॉय कर दिया, फिर उसने डिमांड की 36 बीटीसी की। इस बीटीसी को ओपन सोर्स पे स्टडी किया गया तो मालूम ये हुआ कि यह किसी जर्मन बेस्ड कार्टेल का है। इस पे 2-3 बीटीसी का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये पूरी जो डे 1 से लास्ट डे तक जो फाइंडिंग्स होती है, ये सारी चीज मेंशन। अब यहाँ पे अगर बीटीसी एड्रेसेस, ब्लॉकचेन एड्रेसेस, आईपी पार्ट, वल्नरेबिलिटी पार्ट, एक्सप्लॉयटेशन पार्ट, पाइवोटिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर कैसे, अगर यही सारी चीजें क्लियर नहीं होगी तो व्हाट यू कैन फाइंड, व्हाट वी कैन से, व्हाट वी कैन सजेस्ट टू द LEAs बेसिकली. So this is one thing. So I'm not saying to be expert into entire domain, but at least some pointers are here which is really important to initiate or to find or to guide them to any LEA or any specific IOs who are actually working into these things. Cyber could be anything, चाहे वो किसी ट्वीट को रीट्वीट करके एक फेक न्यूज या नैरेटिव क्रिएट किया गया हो, या क्या पता कोई अच्छी इंफॉर्मेशन को रीट्वीट करके मार्केट में या साइबर इंडस्ट्री में या फैटर्निटी में उसको शेयर किया गया हो कि यस दिस इज अ वेरी intelligent and good thing which was shared by X person. So it's a game of that code. It's a game of that algorithm. It's a code of that internet things. So there are various things. Cyber crime, cyber security, cyber forensics, cyber terrorism, cyber blah blah blah. There are various, things are there. You can coin whatever things. But today the subject is about cyber crime. So there's the linkages among them to know about how the cybers are work. पुराने जमाने में देखते थे वी डू हैव वेरियस क्राइम्स, ट्रेडिशनल क्राइम्स एंड साइबर क्राइम्स। वही चीज है, पहले लोग घोड़े पे चढ़ करके लूट पाट करते थे, बंदूकों से सारी चीजें हुआ करती थी। आज वही चीज एक माउस से क्लिक पे डिपेंड है। इट्स अ वेरी फंडामेंटल थिंग, देयर इज नो रिक्वायर्ड things. So it's a piece of just a code or just internet, that digital thing that simply, if you ask me, binary 0-1 basically. Crimes are there. Those who aware with the crimes, first we should know कि there are various things are there. कहने का मतलब ये है कि साइबर क्राइम जुरिडिक्शनल पर्सपेक्टिव पे स्टडी की जाए कि इंडिया में किस तरह के क्राइम्स इनिशिएट हो रहे हैं। अगर हम देखते हैं यूरोप में या फिर यूएस में या फिर जापान या किसी और कंट्री में कि क्राइम्स किस तरह के हो रहे हैं, वहां पे बेसिकली क्या, जैसे एग्जांपल में दूं, रोमांस फ्रॉड. अब रोमांस फ्रॉड इज अ ट्रेंडिंग थिंग्स इन यूएस और यूरोप पर्सपेक्टिव, बट हियर इन इंडिया इज नथिंग लाइक कि रोमांस बेस्ड क्राइम वो हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकता है एक नया नाम देकर के, इम्पर्सनेशन हो सकता है कि मिसयूज किया जा रहा है. So tags are there, defines are there. So when we see record, any NCRB data or any cyber crime, so these are there, but we have to study about the root, the reality, because we are the people जो हम डेली जाकर के इंटरेक्ट करते हैं, हम ग्राउंड रियलिटी पे वर्क करते हैं, हम पता करते हैं कि क्राइम कैसे हुआ, यूजर कौन है, क्या किया है, बेसिकली वो तो फिगर्स हैं जो बेसिकली वहां पे जा रहे हैं. सो फ्रॉम टॉकिंग अबाउट दिस स्लाइड, when you see types of cyber crime, it's clear: online frauds, social media data breach, ransomware, online phishing, hacking, eavesdropping, crypto and dark web something. So little bit technical here. तो हर तरह की चीजों में नोटिस ये किया गया है इंडियन पर्सपेक्टिव में, स्टडी के अनुसार और फ्रॉम द पोर्टल पर्सपेक्टिव, कि मोर देन 50 to 60% क्राइम्स का जो लिंकेज होता है वो फाइनेंशियली होता है. उनका मोटिव जो होता है बेसिकली फाइनेंशियल कनेक्टिविटीज होती हैं. ऑफ कोर्स और कुछ ऐसी हैं जिसमें सैबोटेज करना, एस्पियोनेज करना या किसी को रेवेंज लेना, इन सारी चीजें इनिशिएट होती हैं. और मीडियम यानी मोडस जो ऑपरेंडी है या जो मीडियम है या जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ही इनिशिएट होती है, चाहे वो गलती से हो या चाहे वो एक्सीडेंटली हो. रैंसमवेयर फ्रॉड्स भी साइबर क्राइम में काउंट किए जाते हैं और नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में इसको तो सबसे बड़ा साइबर चीजें माना गया है. इफ यू सी in US and all, but when you talk about India itself, there are various ransomware cases are there जो काफी बड़े गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट सेक्टर्स को भी अटैक किया और आए दिन यूजर से कंप्यूटर में भी अटैक करते हैं. तो सारे केस हैं
अब इनको स्टडी करना है तो सबसे पहले तो मैंने जो बताया कि वी शुड हैव सम इंडिकेटर्स. व्हाट इंडिकेटर्स आर देयर एंड व्हाट ट्रेंड्स आर देयर. सो आई एम टॉकिंग टू यू लाइक इफ आई एम आस्किंग कि आप मुझे बताइए कि साइबर क्राइम में क्या ट्रेंड चल रहा है. तो हमें अक्सर वो चीज जो न्यूज में, ट्विटर में, लिंक्डइन में या कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में जो मिलती है कि हाँ कोई व्यक्ति लुट गया या किसी का पैसा चला गया, और when you read about the modus operandi, that is a big thing. So let me share some trends which is really helps to understand the gravity of this particular cybercrime as well. Phishing mail, it's very common thing. Job offers वाले fraud, work from home वाले fraud, लिंक्स जो आते हैं व्हाट्सएप पे, दैट इज अ सिंपल थिंग. ऑनलाइन मनी अर्निंग वाले एप्लीकेशन, लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, लाइक शेयर जैसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके डेटा को ले भी रही होती हैं. फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, अगेन अ बिग सब्जेक्ट. कपल चैलेंज वाली भी चीजें चलती हैं. आप देखोगे जैसे अभी 14 फरवरी आ रही है तो इट विल स्टार्ट अ न्यू सीजन समथिंग. सो सिमिलरली दिवाली है या कोई फेस्टिव सीजन है तो यूजुअली पीपल पोस्ट देयर कंसर्न एंड ऑल. कभी कभी ट्रेंड इनिशिएट हो जाते हैं ट्विटर और कहीं और डोमेन में. सो देयर वाज अ वन कपल चैलेंज हैशटैग करके लोग फोटोज अपलोड करते थे, नो डाउट. तो इन चीजों से कहीं ना कहीं रेवेंज या कोई ना कोई इम्पर्सनेशन पर्सपेक्टिव या कोई डीप फेक जैसी चीजें या मॉर्फिंग जैसी चीजें भी हुई हैं, रिपोर्ट हुई हैं और लोगों को पता नहीं होता. कहने का मतलब ये कि इफ आई अपलोड सर्टेन थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम, इफ दैट कंटेंट is privacy protective, that is okay, but again you don't know कि maybe in Facebook somebody reshared because आपका privacy आपने properly check नहीं किया. क्या पता वो device आपका privacy है, but user जो दूसरा user है वो अपने friend के मोबाइल पे देख रहा है, क्या पता he took that photo and he just misused those things. So sharing of data could be from various places. this वो ऐसा नहीं है कि वो linkage ही create करेगा. So we have to understand what thing we have to post at what amount, what big what do you call in HD मैनर में या साइड फेस या फुल फेस कैसे. तो ये चीजें कभी कभी इनिशिएट करती हैं और सबसे मेन जो टारगेट होती है वो फीमेल्स होती हैं, नो डाउट. तो ऐसे काफी केस हो रखे हैं जहाँ पे उनकी मैरिज का सिचुएशन है और अगेन वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है क्योंकि थिंग्स आर देयर. सो दैट इज अगेन फेसबुक फेक प्रोफाइल केस हमने काफी नोटिस किया, चल भी रहा है. और यहाँ तक यह ऐसे ऐसे फेसबुक की फेक प्रोफाइल्स क्रिएट की गई हैं जहाँ पे मतलब बड़े बड़े एमएलए मिनिस्टर से लेकर पॉलिटिकल से लेकर के इवन लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर से लेकर के किसी भी हर व्यक्ति कहीं ना कहीं क्रिएट करके दे ट्राई टू आस्क मनी फ्रॉम व्हाट्सएप फ्रॉम फेसबुक इटसेल्फ. तो काफी ऐसे केस भी हुए हैं जहाँ पे लोग फेक प्रोफाइल क्रिएट करके, क्योंकि फेक प्रोफाइल के लिए उन्होंने प्रोफाइल पे गए, प्रोफाइल लॉक नहीं है तो उन्होंने फोटो डंप की, उनके कंटेंट, उनके जो भी उन्होंने यूजर इंट्रो मेंशन कर रखा है उन्होंने वो देख लिया. आफ्टर दैट व्हाट दे हैव डन, दे ट्राई टू क्रिएट अ फेक प्रोफाइल. और फेक प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद उस यूजर में जो भी यूजर्स लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना. इट्स वेरी इजी. तो कौन देखने जा रहा है कि ये एक्चुअल में दीपक कुमार हैं जिन्होंने कंटेंट क्रिएट किया है? इट कुड बी वेरियस पर्सन. व्हाट्सएप न्यूड कॉल इज अगेन अ वेरी गुड कंसर्न. और व्हाट्सएप न्यूड कॉल में सबसे ताजुब की बात यह होती है कि यह कोई ऑटोमेटेड ऐसा कुछ कंसर्न नहीं, यहाँ पे वाकई एक सेट ऑफ टीम होती है जहाँ पे लड़कियां भी शामिल हैं और यह बहुत चीजों में बहुत केस पकड़े भी गए हैं. आपने नोटिस किया होगा भरतपुर मेवात रीजन में कुछ ऐसे नैप डाउन हुए हैं और दे ट्राई टू क्रिएट things in WhatsApp itself. They try to make a video call and they do these all things, record their videos. They target to those audience, those basically person जिनका कुछ नाम होता है, जिनकी कुछ एक रिस्पेक्ट या एक कोई इमेज होती है, फिगर होता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर LEA के पास जाएंगे तो लॉ एनफोर्समेंट नंबर ट्रेस करेगी, नंबर फेक होगा, पकड़े नहीं जाएंगे. पर how we have done, I'll let you know in ahead basically. So this is concern. दिस इज अबाउट ट्रेंडिंग थीम्स. और अभी एक और चल रहा है लाइक दिल्ली में बड़ा कॉमन सा है, कॉल ऑनलाइन लीकर. दारू सर्च करना ऑनलाइन और काफी ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आ जाती हैं, लोग उस पर क्लिक करके कॉल करके बोलते हैं हाँ जी आप डिलीवरी करते हो, एंड दैट यूजर डू से यस हम करते हैं सर, कहाँ भिजवाना है, कितना भिजवाना है. और इवन वो बोलेंगे सर आप ऑनलाइन अगर जल्दी कैश ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट ही मिलेगा. और सम टाइम दे टुक मनी, उसके बाद ना कॉल ना कुछ, नंबर भी फेक होते हैं. काफी कॉमन सा हो चुका है. और फिर यूजर के अगर पैसे 1000 रुपए, 2000, 10,000 चले भी जाते हैं तो परेशान है. तो एक यूजर के अगर 2000 या 200 रुपए भी गए हैं, व्हेन यू मल्टीप्लाई विथ 30% मिनिमम, बहुत छोटा फिगर मैंने लिया है, तो यू विल फाइंड दैट कि कितना ज्यादा पैसा वो अर्न कर लेते हैं.
और इसका अगर वो 50% भी देंगे फेक नंबर लेने के लिए, तो इट्स वेरी हार्ड टू ट्रेस और ट्रैक दोज थिंग्स. सो यूजर फ्रॉम केरला दे आर मेकिंग कॉल टू उत्तराखंड. तो यू सी द फिजिकल डिस्टेंस, आई मीन ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव डिस्टेंस की 200 रुपए के लिए कौन सा एलईए लॉ एनफोर्समेंट वहां पे ट्रैवल करके फाइंड करने के लिए जाएगा किसी चीज के लिए, और क्या पता उसमें चीजें मिले ना मिले. सो थिंग्स आर देयर which is there. साइबर क्राइम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर के भी चीजें हैं. आई मीन दिस इज अ लेंथी सेशन, सो आई वुड लाइक टू try to cover the fundamental perspective which is important. साइबर क्राइम में जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर के मिसयूज करना, दिस इज आल्सो वन ऑफ द थिंग. IoT, ड्रोन पर्सपेक्टिव, 3D प्रिंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग. जैसे मशीन लर्निंग का यूज करके हम अच्छे मैलवेयर को स्टडी कर सकते हैं, पुराने यूज केस क्रिएट करके. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम काफी चीजें कर सकते हैं. जैसे हमने नोटिस किया कि ऑटोमेशन की चीजें आ रखी हैं, और like this machine learning, virtual reality, these are the technologies. If you see from the I mean big strategic companies, like those who are creating a good report, like Gartner is there, Forrester is there. So they are the leaders. They create things and they tell कि exactly future में क्या trend होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसे rule करने वाली cyber industry and all. इनका misuse भी चीजें हैं. थर्ड इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स. आई हैव मेंशन कि जमतारा, मेवात, भरतपुर, द्वारका, मेहपा. ऐसा नहीं है कि दिल्ली में नहीं है, ऐसा नहीं है कि गुजरात में नहीं है, हर प्लेस में क्राइम्स हैं. बट जो एक हब फाइंड किया गया, ये नोटिस किया गया कि इस एरिया में ज्यादा है. और हम काफी सीरीज भी देख रखे हैं टीवी में या फिर वेब सीरीज में कि जमतारा पे ऐसी चीजें बन रखी हैं. पर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम इनको कैसे स्टडी कर सकते हैं, कि कैसे हमें हेल्प कर सकती हैं. सो नाउ मूविंग अहेड, कोविड पे मोबाइल डिपेंडेंसी ज्यादा थी. लोन को लेकर के काफी ज्यादा फ्रॉड्स हुए हैं. एक लाइन में कहना चाहूंगा लोन को लेकर के कि जब भी हम लोन लेते हैं, लोन को लेकर के हमारे माइंड में एक कंसर्न होता है कि हम सारे एथिक्स भूल जाते हैं, क्योंकि पैसे जब नीड होती है तो उसे नहीं मालूम साइबर क्या है, मोबाइल क्या है, फलाना क्या है. उसे सिर्फ ये है कि मुझे कोई पैसे दे दे. तो ऑनलाइन मनी या लेंडिंग लोन ऐप को लेकर के भी काफी फ्रॉड्स हुए हैं, जहां पे यूजर्स ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेते हैं. कोविड का बहाना माना जाता है कि सर मैडम हम आ नहीं सकते, तो आपके मोबाइल से जो फोटो आप अपलोड करेंगे आधार का, इसलिए वो परमिशन मांगी जा रही है. आई मीन सी द वे, द मैनिपुलेशन एंड द थिंग एंड द थिंग विच इज लीगल में भी इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं उस पार्टी को लेकर के कि यार बात तो सही है, पर मिसयूज कैसे हो रहा है. तो यहाँ पे जब यूजर ने थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद परमिशंस इनेबल हो गई, तो यूजर कैन एबल टू टेक थिंग्स फ्रॉम योर फोन. So a person who is little techy here, who know about how this Android application or any application works, so he have access. तो एक सिंपल भाषा में कहूँ तो वो एक स्पाईवेयर ही डाल दिया आपके फोन में. जब स्पाईवेयर आपके फोन में चला गया, तो आपके फोन में आने वाले सारे चैट, सारे OTP उसके काबू में है. वो कुछ भी कर सकता है. फिर वो आपको कॉल नहीं करेगा कि सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ. फिर तो वो नॉर्मली ऑनलाइन अकाउंट या ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करेगा. जो OTP आपके फोन में आएगा वो रिमोटली खुद ले लेगा और डिलीट भी कर देगा SMS. आप बोलोगे कि यार हमें बैंक से SMS नहीं आया, हमें बैंक से कॉल नहीं आई, हम बैंक पे केस ठोक डालते हैं. बैंक फिर दिखाते हैं अपने लीगल पर्सपेक्टिव में कि यार हमने तो OTP भेजा है, और फिर मोबाइल. तो ये काफी इट्स अ वेरी लेंथी थिंग. सो फंडामेंटली वी शुड नो कि हाउ थिंग्स आर वर्क, हाउ दिस कैन बी देयर. गेमिंग एप्लीकेशन, नो डाउट. सॉरी लेंडिंग लोन का एक चीज और भी है. तो उन्होंने कॉन्टैक्ट को भी सिंक कर लिया. आपको पता है कॉन्टैक्ट अगर फोन में अगर है, सेव है, कोई फाइल है, फाइल could be contact.db या it could be contact.any database file, SQLite database होती है. And they simply took this contact file and they do what? They try to blackmail you कि सर मैडम आप पैसे नहीं दे रहे हो. काफी लोगों ने सुसाइड भी किया. भोपाल में केस हुआ था, एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था. मुंबई में, महाराष्ट्र में भी एक फेमस पर्सनैलिटी ने भी सुसाइड किया था ऐसे. क्योंकि जिनकी समाज में कोई इज्जत है, कोई नाम है, उनके लिए कुछ अगर कोई थ्रेटनिंग कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, इट्स अ वेरी नो वर्ड्स. सो दैट इज थिंग. सो कॉन्टेक्ट ले लिया, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, देन अगेन ट्राई टू से दैट कि सर मैडम आपने पेमेंट नहीं किया है, नाउ यू नीड टू डू व्हाट, यू नीड टू पे इट, अदरवाइज वी विल लीक योर थिंग्स और वी विल से. यार काफी गंदी लैंग्वेज में बात करेंगे, मतलब बहुत ही कि आप खुद सोचोगे व्हाट इज दिस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस बेसिकली. एंड व्हाट हैपेंड देयर,
दे स्टार्ट बिकॉज उनके कॉन्टैक्ट की पूरी डिटेल्स है, 2-3 MB की फाइल होती है मैक्सिमम, 1 MB में 2000-3000 कॉन्टैक्ट आ सकते हैं। इट्स अ टेक्स्ट बेस्ड, TXT बेस्ड, VCF बेस्ड कंटेंट, और स्टार्ट सेंडिंग टू देयर थिंग्स। और कभी कभी तो चीजें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो साफ साफ बोल देते हैं कि हम यूट्यूब पुलिस ऑफिसर है, हम आपके नाम से सम्मन आया है, ये है, नोटिस आया है, ऐसा ऐसा बना के भेज देंगे कि एक नॉर्मल लेमन पर्सन समझ नहीं पाएगा कि यार ये क्या है। उससे डर लगता है कि कहीं यूट्यूब में कोई लीक ना कर दे। अवेयरनेस जीरो रहती है, लोग डर जाते हैं, 2000-3000 रुपये भी पे कर देते हैं कि चलो ठीक है वो हमें बचा लेगा। पर होता क्या है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। 2-3 हजार रुपये ले लिया, लेने के बाद शांत हो गया, आर्मी वाले डिफेंस वाले को टारगेट किया, क्योंकि उसको पता है कि उसका तो कोर्ट मार्शल ही हो जाएगा अगर ऐसी कुछ न्यूज में आ गई, क्योंकि उन्हें तो पहले ही इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। दे ट्राई टू politicians, any JS joint secretary perspective, things are there. So छोटे पैसे लेकर के लेना, केस सामने ना पाना, तो केस कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, बट ये चीजें हो रही होती हैं। So this is also a figure you should know. It's not that कि figure which is mentioned in NCRB that is true. Sometimes that reality is there कि लोग केस रजिस्टर नहीं कर रहे हैं because उन्हें पता है कि सारी चीजें क्या है। Moving ahead, like and share, e-commerce, ये सारी चीजें, बुलेट प्रूफ होस्टिंग, ये एनोनिमिटी, क्रिप्टो करेंसी, गिव अवे स्कैम, MLM, ये क्रिप्टो का काफी तगड़ा चल रहा है। अरे वो ऐड तो देता है तो ये सेफ ही होगा, उन्हें क्या मालूम यार ऐड देता है तो दैट इज सेफ। देखो अभी केरला में कैसा केस बस्ट हुआ है, इतने पैसे 1200 करोड़ रुपए किसी कंपनी को लेकर के उन्होंने गबन किए हैं, और इतने यूजर फंसे हैं, 700-800 लोग से ज्यादा लोग। तो चीजें हैं यहाँ पे, ये समझिए कि उसका क्या है, क्योंकि देर इज नो सर्टेन थिंग्स कि इसको कैसे टैकल की जा सकती है, कितनी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल सकती है। फिर आते हैं एंटी फॉरेंसिक वाले, हैकर्स। आप किसी केस को ले लीजिए, जैसे कल का केस थिंग्स आर देयर। अगर किसी केस में VPN मिल जाता है तो VPN की एक IP पे ही डिपेंडेंसी मेंटेन नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप एक IP पे डिपेंडेंसी मेंटेन करोगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि साफ साफ बोल देगा कि सर मैडम हमारी कंट्री, आपकी कंट्री में MLAT नहीं है, या फिर आप MLAT के थ्रू आओ, या लीगल LR के थ्रू आओ, या हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए, उसके लिए जो द वे इज देयर यू बेटर नो। और क्राइम अगर हमें 1 दिन 2 दिन में इफेक्टिवली नहीं मिल जाता इन्फॉर्मेशन तो वो किसी यूज का नहीं है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी है कि यहाँ पे पर हर मिनट में IPs चेंज हो रही हैं, हर मिनट में चीजें बदल रही हैं, और इन्फॉर्मेशन लेट मिला तो प्रोसेस करो, कंटेंट बनाओ, इट गोज टू वेरियस डिवीजन, गोज टू IS division 2 in MHA, then it goes to CBI nodal, nodal will interact with that country nodal, पूछेगा, so again it will come, so the chain is very big, and end of the day the things are फिनिश। तो यहाँ पे जो पर्सनल लाइजनिंग होती है उसके लिए कुछ एजेंसीज हैं, कुछ नोडल सेंटर पॉइंट है जिसको हमने नाम भी दिया है, दैट इज स्कीम I4C is there, they are also working into that thing to finding, I'll cover that thing at the last of the session. So these are the trends, these are the things which is they are now come to some study perspective, some practical perspective. डेटा लीक है, कंपनी कहती है, अरे ऐसी ऐसी कंपनी है जो साइबर सिक्योरिटी है, दे आर क्लेमिंग दैट यस वी कैन प्रिवेंट यू, वो खुद स्टैम्प हो रही है, उनका खुद रैंसमवेयर डेटा लीक हो रहा है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि यू डिपेंड ऑन सर्टेन थिंग्स दैट कैन वर्क। टेररिज्म इज अगेन इट्स वेल नोन थिंग्स, I don't want to jump into this one. Now coming to investigation perspective, from my belief, my personal experience, I'm always saying that the beauty of any cyber crime, it completely depends on their modus operandi. उसकी modus operandi जानना ही सबसे चीज होती है, क्योंकि जो यूजर उस तरफ है, हैकर है या जो भी क्रिमिनल है, ही हैविंग सेम माइंडसेट, बट फर्क इतना है कि मैं डिफेंसिव अप्रोच के लिए फोकस कर रहा हूँ, ऑफेंसिव अप्रोच के लिए फोकस कर रहा है। तो सेट ऑफ टीम इज देयर विच रिक्वायर्ड things. So body is there, body, like it's not a game of a normal LEA. Sometimes he need certain things, he needs some set of team like forensics, cybercrime investigator, VAPT expert, bug hunters, report expert, forensics के लिए forensic team, malware analysis के लिए लीगल टीम टू टेल दैट एग्जैक्टली कि किस पर्टिकुलर सेक्शन, किस IPC, किस IT एक्ट, किस पर्टिकुलर लॉ में इसको हम ले सकते हैं, हम क्या डेटा भेजें लेने के लिए, नहीं दे रहा तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं, इंटरमीडियरी के लिए हम कैसे उनको पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। सो सेट ऑफ टीम इज देयर,
So it's very important to know. So one vertical under I-Force is also called Joint Cybercrime Coordination Team. So that is also there, which can help into these things. So पहला question ये आता है कि any investigation, those who are fresh into this one, so we have to find these answers. Who W questions जिसको हम बोलते हैं. Who are the potential suspect? What are the crimes committed? When were the crimes committed? Were these crimes submitted to jurisdiction? How can be evidence? The various question comes in mind. कन्विक्शन रेट तो जीरो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मेथड होता है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कलेक्शन एंड सर्च एंड सीजर ऑफ द एविडेंस वही इतना लैक रहता है, उसमें क्वेश्चंस हो जाते हैं. तो आप कितने भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिजल्ट्स को लेके आ जाएं, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएं, बट एंड ऑफ द डे द प्रोसेस इज नॉट, एनीबॉडी कैन चैलेंज. ये भी एक गैप है, तो गैप पे फोकस ना करते हुए विल फोकस ऑन द टेक्निकल थिंग्स. व्हाट इज द थिंग? एक टर्म है दैट इज कॉल्ड थ्रेट इंटेलिजेंस. थ्रेट इंटेलिजेंस, थ्रेट कुछ भी हो सकता है. किसी व्यक्ति के लिए थ्रेट क्या हो सकता है? किसी हॉस्पिटल सेक्टर के लिए, किसी अब ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के लिए थ्रेट क्या हो सकता है? तो ऐसी चीजें होती हैं मार्केट में. सो साइबर क्राइम की जब बात की जाए तो इट्स अ बेसिकली एविडेंस बेस्ड नॉलेज, evidence based knowledge that allows to prevent or mitigate any cyber incident by that information which you have got or received basically. तो एविडेंस पर्सपेक्टिव में वो इंफॉर्मेशन, जैसे केबीसी वाले में +92 से कॉल आती है, तो ये एक एविडेंस हो गया छोटा सा कि अगर से कोई नंबर +92 से आ रहा है तो पहले समझ जाओ इट्स पाकिस्तानी बेस्ड नंबर्स. और अगर वो बोलता है कि आप व्हाट्सएप पे ही हम बात करेंगे तो इट्स द मेथड, द मोडस, वो नॉर्मल कॉल नहीं करेगा, वो ऑडियो फाइल भेजेगा. ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होगा .wav या .mp4, .ogg, .m3u. सो आप जितना ज्यादा स्टडी करेंगे इस फॉर्मेट्स को लेकर के, उतना ही I'm talking about the person who is helping or assisting or guiding to law enforcement, what information they have to take or carve from the phone itself. So that is the thing. I had intelligence can be एक थीम है, साइबर इंटेलिजेंस काफी डिमांड में है. और साइबर इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड द ट्रैकिंग, एनालाइजिंग एंड काउंटरिंग डिजिटल सिक्योरिटी थ्रेट्स. ये नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है, कंपनी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है. So this is also very important to know, and some statistics are there. Let it moving ahead. Data of course data is very important. Data को लेकर के कंपनीज काफी ज्यादा फोकस रहती हैं. एंड चाहे कोई भी बड़ी फर्म हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी फ्री में कोई काम नहीं करने देगा. ध्यान देना है इस चीज के लिए कि हर कंपनी का एक बिजनेस मॉडल होता है. डेटा इज देयर, रिफाइंड डेटा. आप खुद सोचो कि रिसेंटली जो मूवमेंट हुई थी पीएम की अपने उत्तर प्रदेश में, उसका भी जो इन्फॉर्मेशन था वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जा रहा था उनके मूवमेंट को लेकर के. तो वी आर यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म. तो ये लेवल हो चुका है. एक जमाना था हम कैम स्कैनर यूज करते थे, स्कैन करके भेज करने, तो कैम स्कैनर को लेकर के स्टडी की गई, एप्लीकेशन बैन की गई. क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी को समझते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमने फोन से उस एप्लीकेशन से फोटो खींची, उस एप्लीकेशन ने फोटो को जेपीजी फॉर्मेट में सेव किया, उस जेपीजी फॉर्मेट को उसने अपने सर्वर पे ले जाकर के जेपीजी टू पीडीएफ वाले पार्सर एप्लीकेशन से कन्वर्ट किया. तो मतलब उसने रॉ डेटा पहले ले लिया, फिर कन्वर्ट करके हमको पीडीएफ दिया. तो हमारे मतलब हमारा एक कॉपी ऑलरेडी उनके सर्वर पे है. तो आप सोचो कितने सर्कुलर्स, कितने ओएम, कितने लेटर्स, कितने कॉन्फिडेंशियल, कितने प्राइवेट पिक्स, कितने कंटेंट थ्रू होके गए. एंड दैट इज अबाउट द एप्लीकेशन. बट इफ द एप्लीकेशन हैविंग एक्सेस ऑफ योर फोन इटसेल्फ, तो स्कैन छोड़ो, वो तो सारा कुछ ले सकता है. और फिर न्यूज आती है कि जर्नलिस्ट या कोई भी लीगल या कोई भी एलईए या कोई भी फॉरेंसिक या कोई भी मैलवेयर या कोई भी सीटीआई को टारगेट किया जा रहा है. सो थिंग्स आर देयर. So question here is, first we should know about the data, information and intelligence. So data is there, you can see at the top. When you sort it, arrange it presently, visually explain with the story, it's a manner, एक सिंपल सा दिखाया गया है. तो आप समझिए कि जब भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होती है रॉ में, एक्शनेबल नहीं है, उसको एक्शनेबल तक ले जाने तक, तब तक वो नॉर्मल डेटा और इन्फॉर्मेशन रहती है. जब तक एक्शनेबल हो जाता है तो वो इंटेलिजेंस नहीं कहलाती. सो दैट इज वन मोर कंसर्न. नाउ कमिंग लिटिल बिट टेक्निकल हियर. Or the investigation perspective, VPNs, Tor, proxy, VPN numbers, VPN addresses, अभी redacted privacy, fast flux network, encryption, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं. जैसे मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा. फास्ट फ्लक्स वाला, जैसे डीएनएस डोमेन स्विचिंग. जैसे अभी मेरी वेबसाइट, सपोज हमारी वेबसाइट है deepak.com में, ये होस्टेड है एक किसी सर्वर पे, और मुझे लगता है ये सर्वर सही नहीं है, तो मैंने उसकी आईपी चेंज करके उसको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे या किसी और जगह उसको पोस्ट कर दिया.
सो बाय द टाइम वो किसी और आईपी पे थी, बाय द टाइम वो किसी और आईपी पे चली गई. सो वाइल मेंटेनिंग एनी एक्सेस बाय हैकर उस वेबसाइट के माध्यम से, तो होता क्या है कि हमेशा यहाँ पे जो खेल है वो 3-वे हैंडशेक का होता है. मतलब सिनैक एक्ट करके सिंक्रोनाइज बेसिकली. तो होता क्या है कि मैंने अगर गूगल सर्च किया, तो गूगल के अंदर जाकर के फेसबुक सर्च किया, फेसबुक में जाकर के लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन के बाद मैं फ्रेंड पे जाता हूँ, फिर मैं मैसेज, तो जितने भी मेरे इंडिकेटर्स हैं, मतलब जितने भी मेरे क्लिक इवेंट हैं, उस हर क्लिक इवेंट की लॉग्स क्रिएट होते हैं. और ये लॉग कहाँ क्रिएट होते हैं? आपके ब्राउजर में. ये लॉग कहाँ क्रिएट होते हैं? आईएसपी के पास. ये लॉग कहाँ क्रिएट होते हैं? उस फेसबुक सर्वर के पास. तो 3-4 जगह लॉग्स की इंफॉर्मेशन है. तो अगर एक जगह नहीं मिल रहा तो ट्राई टू फाइंड अदर वेज. टाइमिंग्स आर इंपॉर्टेंट. सो आईपीडीआर में काफी चीज रिफ्लेक्ट हो सकती हैं ये चीजें फाइंड करने के लिए. बुलेट प्रूफ होस्टिंग, ये कुछ ऐसे हैं, इनका नाम ही देख रहे हो, बुलेट प्रूफ. सो बुलेट प्रूफ होस्टिंग अगेन अ सब्जेक्ट वेयर सिंपल, ये तो एंटी वाला कंसर्न हो गया कि अगर जैसे नीदरलैंड है, जर्मनी है, यहाँ पे होस्टिंग काफी सस्ती है, काफी अच्छे सर्वर्स भी हैं, और मैक्सिमम साइबर क्राइम कार्टल्स इन्हीं दो लोकेशंस पे आपको मिलेंगे. आप नोटिस करोगे इनके सर्वर्स वहाँ पे. तो जितने रैंसम वेयर्स हैं कुछ ऐसे आपको वहीं मिलेंगे. मैंने कुछ एग्जांपल्स भी मेंशन कर रखे हैं, जैसे ये आपने कभी सुने होंगे इनके बारे में, मोरेनो होस्ट, टूना स्टॉक, पीपी नोट, ब्रेजर, सीसी. ये आज तक पकड़े नहीं गए क्योंकि इनका कंसर्न ही है कि ये ऐसी जगह पे रहते हैं. अब जैबर का जो सर्वर है, जैबर आप लोग जानते होंगे, वन ऑफ सीक्रेट एप्लीकेशन विच इज बीइंग यूज्ड बाय थिंग्स. तो जरूरी नहीं कि यह क्रिमिनल के द्वारा ही प्लांट किया गया हो सकता है कि दिस इज फंडेड बाय सम इंटेलिजेंसीज, और मे बी सम थ्रेट एक्टर्स, और मे बी रिटायर्ड सम थिंक टैंक एक्सपर्ट्स. इट कुड बी समथिंग. सो ये कुछ बड़े लेवल के साइबर क्राइम्स हैं जहां पे हम फेसबुक पे किसी ने किसी को गाली दे दी, रैदर एक रैंसमवेयर किसी गवर्नमेंट इंडस्ट्री को अटैक कर दिया. तो सोचिए एक लेवल कहाँ पे है. बट अगेन द मीडियम दे आर यूजिंग, इट्स अगेन इंटरनेट एंड देयर आईपी पार्ट. एनीवेज वीपीएन्स के लिए लोग यूज करते हैं, और वीपीएन्स और प्रॉक्सीज आर द सब्जेक्ट. सिंपल भाषा में कहें तो कि जैसे मुझे फेसबुक यूज करना है तो सिंपल, आई जस्ट गो गूगल एंड जस्ट टाइप फेसबुक, आई विल गेट दोस थिंग्स. बट इफ आई यूज वीपीएन तो माय डेटा विल ट्रैफिक, माय ट्रैफिक टनल जो है वो दूसरे सर्वर के थ्रू होकर के उसके पास जाएगा, फेसबुक के पास. तो मतलब फेसबुक के पास जो एंट्री होगी वो मेरी रियल एंट्री नहीं होगी, वो वीपीएन वाली एंट्री होगी. सिर्फ वीपीएन को पता है, वीपीएन भी कुछ नहीं, एक सर्वर है, एक कंपनी है जो आपसे ये बोलती है कि आप आइए, हम आपका, आप मेरे थ्रू आइए और मैं आपको आगे रिले करती हूँ या करता हूँ. मतलब ऑफ कोर्स it's a server basically. So they keep all the logs, they keep all the information which is there. और सबसे मेन चीज, बहुत लोग फ्री वीपीएन यूज करते हैं, फ्री प्रॉक्सी यूज करते हैं. तो एक्चुअली दैट इज नॉट फ्री, दैट मे बी प्लांटेड बाय सम इंडस्ट्री, में भी सम हैकर दे टुक, और कभी न्यूज में भी आती है कि ये चीजें लीक हो गई, ऐसा कुछ करके. एनीवेज मूविंग अहेड, ये सारी चीजें थ्रेट इंटेल की है. इन्वेस्टिगेशन पर्सपेक्टिव में हमारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं. आप समझिए किसी केस को लेकर के कोई विक्टिम है, वो जाता है नॉर्मल बोलता है कि सर मुझे कॉल आई, मैंने यह बोला कि मुझे अपना पैन आधार अपडेट नहीं कराना है, या ऐसा कुछ कंसर्न हुआ. उसके बाद यूजर को उसने कहा कि आप मैडम लिंक भेजेंगे, उस पर क्लिक करके आप अपने डेटा दे दीजिए. यूजर ने डेटा दे दिया, और डेटा देने के बाद एक लिंक आता है पेमेंट करने के लिए, पेमेंट भी कर दिया और उसके पैसे चले गए. बस इतना सा काम हुआ. इसको समझने के लिए एलईए जब इंफॉर्मेशन लेता है कि सर मैडम यानी विक्टिम, आप ये बताइए इंसिडेंट कब हुआ, 15 अगस्त को, आपको कहाँ से कॉल आई, फलाने नंबर से, वो नंबर एक इंडिकेटर हो गया. आपको उसने कैसे कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप पे, दूसरा नंबर हो गया. आपको उसने क्या दिया, लिंकेजेस यानी यूआरएल दिया, वो तीसरे लिंकेज हो गया. चौथा, आप जब वेबसाइट पे जाते हो, वेबसाइट का डीएनएस चेक करते हो, वो 5वीं चीज हो गई. वेबसाइट की रजिस्ट्रार इंफॉर्मेशन, देखिए रजिस्ट्रार और होस्टिंग ये दोनों अलग अलग होती हैं. मैंने वेबसाइट का डोमेन खरीदा GoDaddy से, होस्टिंग कराई बुलेट या किसी क्लाउड फ्लेयर पे, किसी और से, या इंडिया किसी जगह से. फिर मैंने अगले साल पेमेंट की दूसरे कंपनी को अपडेट करने के लिए, तो लिंकेजेस आ दिया. फिर उसके बाद मैंने क्या किया, पेमेंट करने के लिए जो यूपीआई डिटेल है मैंने उसे पेमेंट कर दी, फिर उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया. तो हमें 6-7 इंडिकेटर्स हैं, टाइम प्लस 6-7. तो ये इंडिकेटर्स इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है स्टडी और फाइंड करने के लिए. ऑफ कोर्स रोल्स आर देयर, टीम्स रहती हैं, फोरेंसिक्स रहती है, लीगल रहती है, बताने के लिए कि हमें अगर इंडियन पर्सपेक्टिव है तो हम डेटा ले सकते हैं नोटिस भेज करके 9192. इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है, वी हैव टू थिंक एमुलेटिव पर्सपेक्टिव है कि नहीं है. सो डिफरेंट गाइडलाइंस आर देयर. सो टेक्निकली अगेन
डार्क वेब को लेकर के, नॉर्मल वेब को लेकर के सारी चीजें मेंशन है यहाँ पे कि एक डार्क वेब में जो हाई प्रोफाइल क्राइम होता है और एक नॉर्मल क्राइम सरफेस वेब में होता है, उसकी लिंकेजेस क्या होती हैं, एंड कोई डेटा लीक हुआ, उस डेटा को कैसे पता करना है कि उसको लीक करने वाला कौन है। तो ये प्रैक्टिस अक्सर यूज की जाती है कि एक हैकर ने कुछ कंटेंट लीक किया और लीक्ड बाय सम डार्क वेब फोरम। तो लीक करने के लिए आपको कुछ यूजर आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स एक यूजर होता है, फेक यूजर हो सकता है, उसने कुछ ईमेल आईडी दी होगी, वो बात करने के लिए बोलेगा कि आप मुझे इस बीटीसी एड्रेस पे पैसे ट्रांसफर कीजिए। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये सारे पॉइंट होते हैं, उसको ट्रैक करना, जिसको हम बोलते हैं डॉक्सिंग या रिवर्स ट्रैक करना, कि वो बेसिकली लिंकअप किसे कर रहा है या क्या इंफॉर्मेशन है। सेकेंड इमेज जो है, दैट इज टॉकिंग अबाउट द लिंकेजेस ऑफ एट्रीब्यूशन। ईमेल्स हैं और दूसरा ईमेल है, तो अगर कोई कंटेंट डार्क वेब पे पड़ा हुआ है और वो नाम ऐसा है कि कैच मी इफ यू कैन @समझिए, मेरा रियल केस है इसलिए मैंने इसको मेंशन किया हुआ है कि उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे डार्क वेब पे इस नाम से मिली, सरफेस वेब पे नहीं मिल रही थी। तो कोई डेटा लीक था मेरे पास, उस डेटा लीक के माध्यम से मैंने वो इन्फॉर्मेशन वहां से फाइंड किया, लिंकेजेस क्रिएट कर दी, एंड देन वी फाउंड दैट पर्सन। उसको नैप किया, उसको 2-4 मतलब तबीयत से उसको पेश किया गया, उसकी इन्फॉर्मेशन ली, उसके हार्ड ड्राइव्स लिए, वो चीज पॉइंट की गई, फाइंड की गई, उसको प्रूव किया गया कि डिजिटली यस दिस वाज डन बाय सो एंड सो, थिंग्स आर देयर। यह आईओसीज हैं, इसको बोलते हैं इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज। हर साइबर क्राइम में जो हम इंडिकेटर्स लगाते हैं, जो यूआरएल लिखते हैं या कोई भी वेबसाइट लिखते हैं, यह हम अक्सर मिस कर जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं हमें डालने के लिए कि सस्पेक्ट नेम क्या है, इट कुड बी एनी पर्सन, डोमेन्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, मोबाइल नंबर्स कितने यूज किए गए हैं, यूपीआई डिटेल्स क्या है कि वो क्या क्या यूपीआई। तो मैं एग्जांपल दूंगा कि सिंपल एग्जांपल अगले स्लाइड में, जिसको बोलते हैं सिनेरियोज। पहले क्या हुआ करता था कि इंटर स्टेट, दूसरे राज्य की पुलिस दूसरे स्टेट से लिंक में नहीं है कि यहाँ कुछ क्या चल रहा है, बट 2017-18 से जब से एक पोर्टल आया cybercrime.gov.in, तो पोर्टल के माध्यम से स्टेट्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो अगर एक हैकर, एक इंट्रूडर, एक क्रिमिनल, एक फ्रॉडस्टर केरला में बैठ करके सारे नॉर्थ इंडियन नंबर पे कॉल कर रहा है, या बंदा नेपाल के बॉर्डर में बैठ करके गुजरात या महाराष्ट्र में कॉल कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, तो एक यूजर कॉल करता है तो विक्टिम बनते हैं हर स्टेट के। तो हर स्टेट जब रिपोर्ट करता है तो सस्पेक्ट डिटेल लिखता है कि मुझे एबीसी नंबर से कॉल आया, मुझे एबीसी नंबर से कॉल आया। तो जब वो केस जाता है पोर्टल के माध्यम से, तो केस डुप्लीकेट हो जाता है, मतलब सस्पेक्ट की डिटेल कॉमन हो जाती है। तो अब एग्जाम्पल लीजिए कि एक बंदा सुल्तानपुर में बैठा है, वो कॉल कर रहा है अलीगढ़ में, कॉल कर रहा है होशंगाबाद में, कॉल कर रहा है तमिलनाडु में, या कॉल कर रहा है हैदराबाद में। तो सबने लिखा कि मुझे कॉल आई, मुझे वो रश्मि बन के बात की, मुझे वो रचिता बन के बात की, मुझे वो दीपक बन के बात किया, और उसने मुझसे ये पैसे लिए, इसने मुझे ये इन्वेस्टमेंट कराया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं लूट गया। तो यहाँ पे पहले वाले में नंबर सेम था, सेकंड वाले में नंबर सेम था, थर्ड वाले नंबर डिफरेंट था, बट जो यूपीआई डिटेल था या जो लूटने का जो बेनिफिशियरी या जो भी फाइनेंशियल था वो सेम था। तो 4-5 चीजें हमें इकट्ठा मिल गई। तो जब 4-5 चीजें, 6-7 चीजें, 8 चीजें, 10 चीजें, 100 चीजें क्लब हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पोर्टल के माध्यम से as per public information itself there are hell amount of cases which is being registered on this cybercrime portal, और लोग एफआईआर खुद लिखवाने भी जाते हैं। तो जब कॉमनिटीज आ जाती हैं, कॉमन सस्पेक्ट डिटेल्स आ जाती हैं, तो इजी हो जाता है उसको ट्रैक और पकड़ना। बट ये एलईए पर्सपेक्टिव है, so I'll try to cover only those information which can be shareable, because there are various things which we should not or which not supposed to explain or in this public platform कि वो नैरेटिव क्या है, वो मेथड्स क्या है, क्योंकि यह चीजें कोई भी मिसयूज कर सकता है। और अक्सर हम नोटिस करते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट के माध्यम से जब कभी बाइट दी जाती है, वहाँ कंप्लीटली बता दिया जाता है कि हैकर ने ये किया, उसने ये किया, फिर वो, तो सामने वाला समझ जाता है दूसरा कि अच्छा इस तरीके से पकड़ा जा रहा है, अच्छा लोग वीपन भी ट्रैक कर लेते हैं। तो वो फिर ये इशू हो जाता है फोरेंसिक्स या फिर एलईएस के लिए और लीगल वालों के लिए प्रूव करने के लिए कि यस दिस इज द थिंग। डेटा लीक के बारे में ऐसी चीजें आती हैं, डेटा लीक हुआ, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे होगा, डिमांड कर रहा होगा, उसका कुछ हैंडल होगा, जो डेटा आप डंप करोगे उसका अगर मेटा डेटा चेक करोगे, क्या पता कुछ और इंडिकेटर्स मिल जाए। आप चेक करोगे कि ये लीक किसने किया है, उसकी प्रोफाइलिंग की जाती है। प्रोफाइलिंग मतलब रेकी, जैसे हम लोग नॉर्मल यूजर के पीछे पड़ते हैं, उसको उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, तो सर ऑनलाइन भी चेक की जाती है कि वो बंदा क्या पोस्ट लाइक कर रहा है, क्या हैक कर रहा है, क्या क्या अटैक कर रहा है। सो थिंग्स आर देयर। मोबाइल पर्सपेक्टिव में जब स्टडी की जाती है तो वेरियस एंगल्स आर देयर। आपको सोचो कि डेवलपर कोई कंटेंट क्रिएट करने में हार्डली टेक थिंग्स
इट कुड बी अ वेबसाइट, कुड बी एन APK मोबाइल एप्लीकेशन। तो हमने वेबसाइट देखी, वेबसाइट सोर्स कोड डेवलपर है, उसने ज़्यादा मेहनत नहीं की, कॉपी पेस्ट कर दिया, आपको दे दिया, हमने पेमेंट कर दी, हमने ध्यान भी नहीं दिया, और क्या पता, जस्ट अ मिनट, उसे बंद कर दें, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हेन यू सी द सर्टिफिकेट एड्रेसेस एंड ऑल, तो पहले क्या था कि रियल पर्सपेक्टिव में कंटेंट था, अब फेक एप्लीकेशन क्रिएट की जा रही हैं, डेटा ली जा रही हैं, इवन दे इंटीग्रेट सम सॉर्ट ऑफ malwares, इफ यू हर्ड अबाउट जोकर malware, तो ये कंटेंट ऑलरेडी पड़े हैं इंटरनेट पे जो आप देख सकते हैं। प्लीज लीड आंसर। So what is happening here? So you can see this concern about the communication. Mobile application को सिर्फ net चाहिए होता है, internet. Would you mind? Can somebody stop this? I'm getting some issues. Attendees, please don't touch the screen because it is actually very problematic to read if you're doing this. Please, it's a गलती से लोग request. शायद लोग annotation use कर रहे हैं गलती से, so maybe issue. Anyways, so coming ahead, like किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में जब उसको नेट मिल जाता है, इंटरनेट मिल जाता है, तब वो अपने प्रोसेस को इनिशिएट करता है। तो एप्लीकेशन की साइज 2-3 MB होती है, छोटी होती है, और जब उसको नेट मिल गया देन इट सेंड सम पेलोड टेक्निकली, और रिमोटली डेटा लेने की कोशिश करता है। तो डायनेमिक एनालिसिस की जाती है जो इंपॉर्टेंट है एक लीगल इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट इस चीजें मिसिंग होती हैं। सो दैट इज वन एरिया एज वेल। So now these are the some fundamental perspective of Chinese application which was recently banned by Indian government as well. Thank you. So this is one. Firebase जैसे गूगल की नेटिव प्लेटफॉर्म्स को अब्यूज किया जा रहा है, क्योंकि गूगल तो कोई बंद नहीं करेगा, तो यहाँ पे चीजें, तो इसके लिए भी चीजें हैं, गाइडलाइंस बन रही हैं, फाइंड की जा रही हैं कि जिस तरह आपका iOS के एप्लीकेशन सेफ है, प्रॉपर्ली डिटेल मांगी जा रही है, उस तरह इसका भी कुछ होना चाहिए एंड्रॉइड को लेकर के भी। दूसरा, इट्स वेरी कॉमन वेयर यू हैव अ वेबसाइट .in। अब .in जो वेबसाइट होती है, तो यूजर लोग ये सोचते हैं कि इट्स अ इंडियन वेबसाइट, and you can see Chinese or Pakistanis or different countries, I'm not pointing the name there, ऐसी बहुत सारी companies हैं, they are using things and where they are trying to dump the APK file, and these APK files are again malicious। APK मतलब जब हमने कभी शेयर इट से कुछ हम डेटा शेयर करते हैं, मोबाइल की एप्लीकेशन शेयर करते हैं, तो अक्सर ये फॉर्मेट जो मोबाइल की दैट इज APK। सिमिलरली फॉर IPA फॉर दैट iOS पर्सपेक्टिव। तो हियर वेबसाइट इज देयर, गेम खेलने के लिए बोल रही है, रिचार्ज करने के लिए बोल रही है, रिचार्ज के लिए वेबसाइट कुछ और खुलती है, खुलने के बाद देयर इज UPI डिटेल्स आर देयर, देन इट गोज टू समथिंग। हम मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं ट्रैक करने के लिए। सो इन्वेस्टिगेशन साइबर पर्सपेक्टिव में ये इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, रैदर कि सिर्फ हमने इस वेबसाइट यानी XY613.in को स्टडी किया गया, तो दैट इज अगेन, एंड वेबसाइट इज अगेन नॉट सिक्योर, HTTPS। सो दिस इज again one concern. Source code analysis perspective, again this is a very good, where they do have website source code। जैसे आपने when you click right click and view, you have to check the view page source और view page code basically, तो आपको दिख जाता है वेबसाइट का सोर्स क्या है, मतलब उसका जो कोडिंग है, लैंग्वेज है उस पेज का, अगर HTML में या ASP.NET या किस में क्रिएट की गई है, PHP में, जिसमें भी, विल गेट सम इंडिकेटर्स। सम टाइम लोग माइनिंग भी यूज करते हैं, तो ऐसी चीजें मिल जाती हैं। सो दिस इज अगेन वन इंडिकेटर्स विच वी कैन हेल्प। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूशन की। एट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव में यू कैन सी दैट कि हम जब कभी भी किसी इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, लाइक कॉल लिंकेजेस स्टैब्लिश करते हैं कि वेबसाइट में भी आप ये सोचिए कि कभी आपने कोई चीज परचेज की ऑनलाइन, वो काफी सस्ती है, तो वेबसाइट का URL भले ही कुछ हो, पर उसका पेज अमेजोन की तरह, उसके ऑप्शंस पूरे अमेजोन या किसी भी अच्छे वेबसाइट से लिंक करते हैं, और आपने पेमेंट कर दिया, फिर आप रिपोर्ट करते हैं कि मुझे ये गुड्स नहीं मिला। तो इस पर्सपेक्टिव में इट्स अगेन अ कंसर्न वेयर
hacker create multiple websites. You can see ebay707.com है, ebay303.com है, ebay808, मतलब एक यूजर जिसका नाम है हुईजान 199705 जीमेल, मतलब एक जीमेल से उसने मल्टीपल डोमेन्स क्रिएट कर रखी हैं और हमें सिर्फ यही मालूम है कि ebay707.com ही एक फेक वेबसाइट है। तो इन्वेस्टिगेशन में अगर मल्टीपल चीजें मिल जाए, मल्टीपल यूआरएल्स मिल जाए, मल्टीपल रिवर्स ट्रैक करने को मिल जाए, तो इट्स क्रिएट अ गुड इंफॉर्मेशन टू ट्रैक दैट परपिट्रेटर। बट एक सही डायरेक्शन में, एक सही मैनर में ही चीजें हो सकती हैं फाइंड करने के लिए। सो दैट इज वन कंसर्न विच मे हेल्प। Guys, now I'm very serious. If whoever is doing this, if Hi Megha, sorry to disturb you. The name of the candidate is Pankaj. Okay, can you just remove him from the Yeah, I will. meeting, please? Yeah. Anyways, so moving ahead, like आईपी इज देयर। अब आईपी स्टडी की जाती है। अब देखिए यहाँ पे आईपी को अगर आप एलईए इनिशिएट करती है तो शायद इंफॉर्मेशन ना मिल पाए, बट ईमेल अब यहाँ पे एक इंडिकेटर, शायद ईमेल को हम अगर पॉइंट करते हैं, ईमेल को हम ट्रैक करते हैं जीमेल के माध्यम से, शायद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो दीज आर द सम इंडिकेटर्स व्हिच हेल्प्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ सम परपिट्रेटर कि हमने लास्ट 20 आईपीज मांग ली, कि इस यूजर ने किस 20 आईपी से लॉग इन किया। सिंपल एग्जाम्पल, मुझे आज कोई क्राइम करना है तो आज मैंने वीपीएन यूज करके फेसबुक यूज किया, कॉमन सेंस। तो पहले तो मैंने रियल आईपी यूज की थी, तो दीज लिंकेजेस आर देयर कि आप रियल आईपी यूज की, एयरटेल की, जियो की, और आज वीपीएन करके करो तो वीपीएन की आईपी आज जाएगी। बट अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड मांगते हो, क्योंकि हैकर ऐसा नहीं कि 15 अगस्त को अटैक हो तो 15 अगस्त को ही हम डेटा लेंगे, हम 15 अगस्त से पहले 1 महीना 3 महीने की वीडियो फुटेज देखते हैं कि कौन आया, कौन गया, कौन रेकी किया, एक रियल लाइफ में। सिमिलरली वो चीजें यहाँ पे भी होती हैं। So moving ahead, things, reverse analysis and all. I have explained you about OSINT part, legal part and forensics part somehow which can help. Forensics में आगे explain करने वाला हूँ कि जैसे image है, ये image को भी हम reverse analysis करते हैं, reverse check करते हैं कि reverse का content कहाँ पे है। तो आपने notice किया जैसे कोई image है, इमेज में भी सेडक्टिव और ल्यूर पर्सपेक्टिव, तो यूजर जल्दी अट्रैक्ट होता है सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स में, और काफी हनी ट्रैप वाले केसेस भी आए हैं, नो डाउट। तो जब हम Yandex, एक रशियन सर्च इंजन है जो काफी अच्छा सर्च इंजन है एज कंपेरेटिवली गूगल फॉर रिवर्स इमेज ऑफ एनी इमेज। सो जो पर्सन जो एक्चुअली ग्राउंड पे काम करते हैं गैदरिंग करने के लिए, दे नो दे हैव देयर ऑन आर्सेनल्स, दे हैव देयर ऑन एप्लीकेशंस, सो did this thing and we got various good results. So this is one example for the reverse perspective. Little bit moving ahead, cyber threat intelligence. cyber threat में भी काफी ऐसे ग्राफ है कि आपको इतनी चीजें फाइंड करनी चाहिए तब जाकर के कुछ चीजें मिल सकती हैं। I'll share this slide, I mean to do a detailed study or something, but just now telling you event कैसा हुआ, यूजर कौन था, नेटवर्क कैसा था, डेटा का लीक का कॉन्टेक्स्ट क्या था, एनोनिमिटी कितनी मेंटेन की, कैसे उसके टीटीपीज थे, क्योंकि क्या पता आज वह कोट पहन करके हैक कर रहा है, कल क्या पता वो हुडीज पहन के हैक कर रहा हो, मतलब एक नॉर्मल भाषा में। तो जब टीटीपी स्टडी की जाती है कि हैकर यानी वो जो कोड है, वो कोड यह करता है कि कोड एडोब की अपडेट, जो एडोब पीडीएफ रीडर यूज करते हैं उसके माध्यम से अटैक कर रहा है। नेक्स्ट टाइम वो फॉक्सी रीडर की, मतलब वो पीडीएफ रीडर के माध्यम से अटैक कर रहा है, तो इस टीटीपी। तो हमें ये समझना चाहिए किसी भी थ्रेट एक्टर, एक क्रिमिनल का मोटिव या माइंडसेट कैसा है अटैक करने के लिए। सो ये एक डिटेल मैनर है फाइंड करने के लिए। इस तरह के माइटर अटैक साइकिल्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम इंटेलिजेंस में, जो डिटेल एनालिसिस करती हैं कि कोई रैंसम से कॉलोनियल पाइपलाइन अटैक था तो किस तरह से एलईए ने किस तरह से नैप किया, कैसे टेक्निकली फाइंड की। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन। एट्रीब्यूशन में एडवांस लेवल पे इट्स नॉट ओनली द स्मॉल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, सम टाइम यू नीड टू नो द ग्रुप्स आर द वेरियस ग्रुप्स। आपने नोटिस किया होगा पहले कितने सारे टेलीग्राम पे ग्रुप्स थे, जैसे जो ये आल्ट इंडिया और इस तरह के जो चीजें, पायरेसी ऑफ कंटेंट जो लीक किया करते थे, काफी हद तक अब कम हो चुके हैं, बट स्टिल सम आर देयर। थिंग्स आर देयर व्हेन प्रॉपरली और तरीके से जब कोई चीज जाती है, नोटिस जाता है, कोई कंटेंट जाता है एक सब्सटेंशियल मैनर में फाइंड करके, तो दे आर टेकिंग थिंग्स, बिकॉज उनको मालूम है कि अगर ये कंटेंट रिमूव नहीं हुआ तो दे हैव टू फेस सम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एज वेल। तो टेक्निकली ये चीजें हैं। ये एक अगस्त और सितंबर का डेटा है जो दिखाया गया है कि किस तरह से कोई एक्टिव फोरम है हैकर ग्रुप का, या मैलवेयर है, या कोई टेलीग्राम पे कुछ ग्रुप्स हैं सिंगापुर बेस्ड या इंडिया बेस्ड, डिस्कॉर्ड जो आप यूज करते हैं एप्लीकेशन। तो दीज आर द थिंग्स। टूल्स भी मेंशन है, टूल्स इट कुड बी डोमेन बेस्ड। तो ओसेंट मतलब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस,
गवर्नमेंट के भी टूल्स हैं, दे आर यूजिंग इन हाउस टूल्स जहाँ पे APIs को इंटीग्रेट किया जाता है, दिस कैन वर्क। फोरेंसिक्स में हल्का सा मैं ब्रीफ करूंगा कि फोरेंसिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी ब्यूटीफुल एरिया वेयर इट्स लाइक अ टिप ऑफ आइसबर्ग बेसिकली यू कैन सी कि एक यूजर को सिर्फ नॉर्मल कंप्यूटर दिखता है कि उसमें कितने कंप्यूटर्स, कितने सिस्टम, कितने एप्लीकेशंस हैं, but when you see from a perspective of a forensicators or a expert or a analyst, so he may give a very good juicy information. आपको मालूम होना चाहिए कि डार्क वेब या फिर क्रिप्टो करेंसी जैसे हाई लेवल क्राइम्स होते हैं, यहाँ पे डिजिटल फोरेंसिक्स काफी हेल्प करती है टू फाइंड गुड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी हेल्प एज ए लीड पोस्ट एनालिसिस, जिसको हम बोल सकते हैं. तो दिस इज also would like yesterday case, that is again the same thing. Find they have laptops and they have 3 mobile phones to focus those all things to do a thorough analysis. Then they prove that yes, that particular thing created by that user. Anyways, I won't jump too much. I'll just go skipping these all things. कंटेंट अगर ओवरराइट नहीं हुआ है तो डेटा रिट्रीव हो सकता है सेम मीडिया से. कंटेंट अगर ओवरराइट नहीं हुआ है तो टेक्निकली जो फाइल सिस्टम्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं कैसे क्या है. Similarly, forensics perspective, there are various analyses and indicators and artifacts are there which can retrieve data, which can help to prove things. So ये सारे tools में functionalities होती हैं. डार्क वेब को लेकर के भी कुछ pointers मैंने mention किए हैं. That is there. Forensics tools कुछ ऐसे होते हैं because it's online session, so I thought कि images दिखाने से समझ. तो True Imager या Cyber Check Suite ये CDEC इंडिया के tools हैं. In case एक्सेस डेटा सिस टूल्स, ये हम जो रिपोर्ट में मेंशन करते हैं कि हमने इन टूल, इन स्टैंडर्ड टूल के माध्यम से एक स्टैंडर्ड मैनर में कलेक्शन किया और फैक्ट बेसिस पे रिपोर्ट प्रस्तुत किया, तब चीजें सही होती हैं. वहां पे प्रॉपर्ली सीजिंग नहीं हो पाई, मोबाइल सीज किया, उसको खोल के उसमें चेक कर लिया, उसको डाल दिया, ना कोई हैश वैल्यू क्रिएट किया गया, तो ये काफी लैक होता है इन चीजों को बताने के लिए. ओपन सोर्स टूल्स भी हैं मोबाइल रिकवरी के लिए. ऐसा है कि ये टूल कुछ मेंशन किए हैं सिर्फ नॉलेज के लिए. इट्स नॉट अबाउट द थिंग विच इज फॉर अ स्पॉन्सर्ड और प्रमोशन. इज नथिंग, इट्स जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस. सो यू कैन यूज एनी टूल. एग्जांपल दिया गया है कि किसी भी सस्पेक्ट, एलिज्ड या फिर एक्यूज्ड के लैपटॉप से किस फॉरेंसिक मैनर पे डेटा रिट्रीव करना है एक डेस्टिनेशन ड्राइव में, ताकि इस डेस्टिनेशन ड्राइव को प्रॉपर्ली स्टडी किया जाए, रिपोर्ट बनाई जाए और प्रस्तुत किया जाए कोर्ट में. सो दिस इज द मैनर. ये चीजें थोड़ा एलियस में इशू है. कभी फंडिंग का इशू होता है, कभी डिवाइस को हैंडल करने की एक्सपर्टाइज का इशू होता है, कभी पावर का इशू होता है, कभी any issues could be there. So this is one area. Open source tools भी हैं, commercial tools भी हैं. So that is one. Case studies perspective में आप देख सकते हो कि there is a very good website called OCCRP. That is they have reported various things in detailed manner. जैसे Russian mobile app publishing network appears to have infected millions of phones with malwares that converts these all things. So these are there. So ad fraud I have given you as AAAS basically, advertisement as a fraud. And there is a very common things which is again there कि स्पॉन्सर्ड जो एप्स आते हैं, आपने नोटिस किया है कि अगर हम कोई एप्लीकेशन व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, नॉट व्हाट्सएप, फेसबुक पे, इंस्टा पे क्लिक कर देते हैं तो उसी वही एड्स आ जाती हैं, बिकॉज दे टुक आवर कुकीज एंड दे शो थिंग्स एज पर आवर नॉलेज, तो एज पर आवर इंटरेस्ट बेसिकली. तो वो भी चीजें हैं. तो यहाँ पे एडोको, जस्ट मोबी जैसी चीजें हैं जो डेवलपर्स हैं, जहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट की जाती हैं, SDKs हैं. तो ये भी है थोड़ा हाई लेवल में पता करने के लिए. यह इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जिसको पकड़ पाना नामुमकिन था, बट इंटरनेशनल एजेंसीज ने पकड़ लिया बिकॉज ऑफ द कोलैबोरेशन, टीम्स, सब्सटेंशियल एविडेंस, टाइम, मतलब सारे तरीकों से. तो ये ऐसे कंट्रीज में जो VPN सर्विस प्रोवाइड करते थे, या कुछ ऐसे बंकर्स है जहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ टेक्निकल ही चीजें फाइंड नहीं कर सकते हैं, विदाउट टेक्निकल भी इंफॉर्मेशन हेल्प होती है, जिसको हम बेसिकली आम भाषा में ह्यूमन बोलते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस. अब सोचिए कि 600 लोगों की टीम पकड़ने चली थी इस पर्टिकुलर अंडरग्राउंड डेटा सेंटर वाले डार्क वेब, इलीगल डार्कनेट प्लेटफॉर्म को, जहाँ पे यह एक ओल्ड नेटो बंकर में इसको प्लेस किया गया था, जहाँ पे 5 फ्लोर थे. जैसे अपने मूवीज में देखा होगा कि वेरियस थिंग्स सीरीज आर देयर, जहाँ पे लगभग 200 सर्वर्स थे, फोन्स था, एंड 13 लोग को अरेस्ट किया गया, जिसका किंग पिन बेसिकली 59 ईयर डच मैन था. इन्वेस्टिगेशन चल रही थी. सो इट्स लाइक दैट. आप सोचो कि सारे VPNs हैं, सारा टेक्निकल चीजें हैं, कैसे नैप किया हुआ. तो कहीं ना कहीं ऐसे लिंकेजेस, ऐसे इंफॉर्मेशन लीक हो जाती हैं, फाइंड हो जाती हैं, जो प्रोवाइड करते हैं. यूरोपोल अगेन, दैट इज
same thing. Tools framework, Google Doc is there, online services are there which we can help her find these all things. There are certain start me जैसे वेबसाइट्स है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के लिए जहाँ पे ईमेल ट्रैक करना, डार्क वेब स्टडी करना, ओसिन गैदर करना, क्योंकि अक्सर लोग डिपेंडेंसीज मेंटेन करते हैं एक ही टूल पे कि हमें कुछ मिल सकता है. सम वेबसाइट्स आर देयर टू डू अ ट्रेंड एनालिसिस, सम डोमेन्स आर देयर वेयर यू कैन डू टेलीग्राम मॉनिटरिंग थिंग्स, क्या पता किस कीवर्ड से कुछ फाइंड हो रहा है. कुछ ट्विटर ट्रेंड एनालिसिस है जहाँ पे हम सेंटिमेंट एनालिसिस चेक कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, जियो वाइज, पीपल वाइज, फॉलोअर वाइज, फ्रेंड वाइज, हैंडल वाइज. Similarly, government have their own tool internally where, I mean, that is for collection and things. In-house developed APIs are there where they can able to find those things. Twitters is there. Mitaka is also a good add-on where you can check the reverse analysis of a domain. And Multigo is the Rajnikant of this domain. It can do various intelligence gathering, data mining, जो बहुत अच्छा एक प्रकार से use किया जा सकता है. एसएमएस हेडर की बात की जाए, जब एसएमएस आता है तो एसएमएस में आपने स्टार्टिंग में देखा QP-CSK TSC, ये कंटेंट है. आई हैव अ सॉफ्टवेयर हेल्प दैट यू मेक फलाना एंड आई कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप थ्रू दिस QR.VIP. एसएमएस हेडर यानी QP-CSK एक ये इंफॉर्मेशन, दूसरा HTTP URL खोलने के बाद जो खुलता है वो इंफॉर्मेशन, और ये सारी चीजें जो हेल्प करती हैं फाइंड करने के लिए. कुछ वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट, ट्राई की वेबसाइट, sms-header.try. you can check freely there कि that belongs to which company, and I mean for LEA perspective और for legal perspective किसको, मतलब किसी पार्टी में इससे एसएमएस आया और यूजर इससे लूटा, तो इस चीज को आप ट्रैक कर सकते हो यहाँ से पता करने के लिए, और उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो कि आपके एसएमएस इस नंबर से आया. क्योंकि होता क्या है, ऐसे ऐसे कंपनीज होती हैं कि QP-CSK जो शॉर्ट कोड है, मतलब एक नंबर है, इस नंबर के अगेंस्ट शॉर्ट कोड डिफाइन कर दिया गया है ताकि प्रमोशनल मैसेज लगे, पर ये भी कोई नंबर के पीछे लिंक है. तो नंबर मिल गया DLT के माध्यम से, MCA के माध्यम से ये मिल गया कि ये कंपनी बेसिकली कहाँ रजिस्टर्ड है, एंड सू कर दिया गया. बट प्रॉब्लम ये होती है कि इनके जो एड्रेस होते हैं वो उसकी फिजिकल लोकेशन नहीं होती है बहुत सारे रियल केसेस में, तो टेक्निकल ग्लिचेस भी हैं फाइंड करने के लिए. टूल्स हैं सारे मेंशन किए हैं, अब ये सारे फोरेंसिक्स और सर्ट के टूल्स हैं. So it's a set of team, set of feeds, set of content which is required. I mean, it's not like a normal investigation perspective. Of course, various things are required. Networking से भी काफी information मिल सकती है, deep web से, dark web से, CTIs, community से, phishing से. Pillars हमेशा ही रहते हैं जो स्टडी करते हैं, फाइंड करते हैं चीजों को लेकर के एक अच्छे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देने के लिए. And there's a scheme basically at nodal agency in India which is working on this area, that is I4C. I hope you should know about these things. They have multiple components, where first component talking about the advanced cyber threat, जितने भी बड़े बड़े perspective emerging cyber crime या कोई threat होता है, TAU threat analytics unit study करती है. Similarly, cyber crime portal is there. They have a joint investigation team is there. They have an NCFL laboratory at Dwarka where yesterday that case was studying जो हो रहा है, that bully by that case. Similarly, NCTC is there, train capacity building for judiciary, capacity building for law enforcement agencies and LEAs itself. So that is NCTC portal. Those who having GOV email IDs, they can able to this. Cybercrime ecosystem is for awareness perspective, जो awareness करती है influencers को point करके, cyber दोस्त ट्विटर हैंडल के माध्यम से, ये सारी. और लास्ट है आपका रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, जो हेल्प करती है कि LEAs के प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो BPID के माध्यम से यह डिफाइन की जाती है कि हमें SOP कैसे बनानी है, हमें टूल्स कैसे डेवलप करने हैं, हमें लीगल चेंजेस क्या करने हैं, हमें IT एक्ट अमेंडमेंट्स क्या करने हैं, हमें एविडेंस एक्ट कैसे लेके आना है, सारी चीजें. ये पोर्टल है cybercrime.gov.in. तो पहला टैब है रिपोर्ट विमेन चाइल्ड क्राइम, जो CSAM चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल CP पोर्नो कंटेंट है. यूजर अपने यहाँ से यूज करके रिमूव कर सकता है, सॉरी रिपोर्ट कर सकता है इंसिडेंट को. इंसिडेंट अगर कॉग्निजेबल है या इंसिडेंट लगती है कि FIR में तब्दील हो सकती है, वो LEA लॉ एनफोर्समेंट की कॉल होती है. क्योंकि मैं यूजर हूँ, विक्टिम हूँ, मैंने चूज किया ये पोर्टल, मैंने एक केस, एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया, दिल्ली द्वारका चूज किया, द्वारका के पास एक केस जाएगा, द्वारका LEA अपने पोर्टल पे चेक करेगा, उसको स्टडी करेगा, चेक करेगा कि यूजर जो है विक्टिम है, हेलो सर मैडम आपने रिपोर्ट किया, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, उसे लगता है कि ये केस FIR में बदल सकती है, तो FIR ले लेता है, और CCTNS में रियल टाइम अपडेट भी हो जाता है ICGS के माध्यम से.
दूसरा जो है रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, मतलब जो भी साइबर क्राइम पर्सपेक्टिव चीजें होती हैं वो यहाँ पे रिपोर्ट की जाती हैं। रिसोर्सेज हैं, साइबर वॉलंटियर्स, यू कैन एबल टू चेक एंड यू कैन सी वॉलंटियर्स में कि अगर कोई बंदा हरियाणा का है या कोई अदर स्टेट का है, यहाँ पे अप्लाई करके लॉ इन्फोर्समेंट के लिए हेल्प कर सकता है, साइबर क्राइम में, लीगल में, फॉरेंसिक्स में, ट्रेनिंग में, एनीथिंग। स्टेट की कॉल होती है, साइबर ये सब्जेक्ट स्टेट का है, स्टेट स्टडी करेगा, वो सोचेगा। तो दिस इज अ फैसिलिटेटिंग बाय एमएससी इटसेल्फ फॉर द सेम। रिसोर्सेज में कुछ कंटेंट है पढ़ने के लिए, अवेयरनेस मॉड्यूल्स हैं which can help, and very important thing which is a game changer you can say, and that is called 155260। ये एक ऐसा टोल फ्री नंबर है जिसपे गवर्नमेंट ने लगभग आज तक मोर देन 30 CR पैसे बचा रखे हैं पूरे इंडिया से एक कम टाइम में। अभी ऑफिशियली अब हर स्टेट में सारे लॉन्च हो चुके हैं। मतलब आज मेरे साथ गलती से या एक्सीडेंटली या रियल टाइम में कुछ पैसा फ्रॉड हो जाता है ऑनलाइन, तो मैं इस नंबर पे कॉल करता हूँ। स्टेट पे जैसे वन डायल 100 पे कॉल करने पे जैसे कॉल जाती है, वैसे ही कंट्रोल रूम पे कॉल जाता है। अगर बंदा केरला में है तो केरला में जाएगा, बंदा ट्रैवल कर रहा है बेंगलुरु में तो ऑफकोर्स कर्नाटका में जाएगा। तो दे हैव देयर स्टेट लेवल टीम। कॉल जाने के बाद आई शेयर वन लिंक ऑफ रिसेंटली विच वॉज क्रिएटेड बाय दिल्ली इटसेल्फ कि वो कॉल सेंटर कैसा होता है। सो आई कैन शेयर दैट URL लिंक एंड यू कैन सी एग्जैक्टली बाय द टाइम अगर कुछ घटित हो जाता है, यू कैन मेक अ कॉल टू देम, जस्ट से दैट कि यस मेरे कुछ पैसे, अब देखो 2000 3000 तो चाहे 2000 हो चाहे 10,000 हो चाहे 2 लाख हो, सारे पैसे मेहनत के होते हैं। यूजर कॉल करता है पुलिस में, रिपोर्ट कराता है कि सर मेरा नाम ये है, दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरे साथ फ्रॉड अभी ये हुआ है कि मेरे पैसे 2000 रुपये पेटीएम से कटे हैं रात को 10 बजे। पेटीएम से मैंने इस SBI, इस नंबर, इस UPI, इस फलाना पे दिया है और मेरी ट्रांजेक्शन ID ये है, ये मेरा स्क्रीनशॉट है। तो रेडी विथ योर एविडेंसेस एंड ऑल, ready with your proper details, and you can call there. Also report your complaint on this cybercrime portal, so you'll get an acknowledgement number। and आपने सही टाइम में जल्दी से रिपोर्ट कर दिया तो क्या पता वह अमाउंट जो है, वो जो ट्रांजेक्शन है वो फ्रीज हो जाए, होल्ड हो जाए। उस ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, उस अकाउंट की नहीं। तो ट्रांजेक्शन फ्रीज हो जाएगा जब तक वो प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन देता नहीं है, तब तक वो आगे नहीं जाएगा, वो फिर रिवर्ट हो जाती है। तो टेक्निकली सारा गेम ये बैंकिंग फिनटेक इंडस्ट्री का है, जहाँ पे हमने कोशिश की है कि पोर्टल के माध्यम से सारी चीजें इजीली हो जाए। Anyways, the end of the session, I have small blog trying to write sometimes. There is a small blog on forensics and cybercrime and security. You can go to there. At the bottom, you can get the categories. There is a free blog basically. You can check some content. फील्ड्स में साइबर में थोड़ा सा अपडेट होना पड़ता है। एक इशू है लीगल डोमेन में कि साइबर में थोड़ी सी अगर हल्का सा नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या टर्म्स या पॉइंटर्स अगर क्लियर हो जाए तो शायद वी कैन बीट इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन दिस एरिया। फील्ड्स के लिए रिकॉन्शल भी एक अच्छा डोमेन है जहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। सो दैट इज थिंग्स, रिसोर्सेज विच मेंशन विच यू हैव टेकन। यू मे कनेक्ट विथ मी in any case, any query or any something for the investigation in a technical manner like forensics, cyber intelligence. So this is from my side. So this is done. If any query or any something you may ask. Thank you so much for this insightful session, Deepak ji. It is actually a very great and very wonderful presentation. We can move forward to the questions, but before that, Paki had a small announcement to make. If you please may allow. Please. Yeah, Paki, you can just go on. Hi everyone, a very good evening. Hi Mr. Deepak, hope you're doing well. It was really a fun session, a very knowledgeable one. And I'm really glad that I get the opportunity to hear you. Thank you for accepting our invitation and extending this amazing session to not just us, but to all the attendees. And thanks to everyone who has joined us for this session. So yeah, just a small update that we as a team of World Cybersecurity Forum, we have been active since 2019 in the field of cyber laws and cyber security. So last year, through some years, we have been constantly seeing that there's a deep rise in the cyber crime cases, and already every information is being shared by Mr. Deepak during his session. I just want to say that
we have getting a lot of queries regarding how we can obtain a degree or a diploma in all these kind of cybercrime investigation, cyber security, and other stuff. So we as a team have brought several other events, workshops, and courses. So for right now, we have brought two related courses to it. First is certified course on IT Act, that is the Information Technology Act, where we'll be covering the basic aspects of the IT Act that is present in India. For your easy go, I would really like to share just a small message so that you can all can easily read about that in the message. So yeah, you can definitely go and check about this on our website. Everything is mentioned under this message, so you can definitely give it a read and let us know if you have any questions related to it. For the course module and other information and more benefits, you can definitely switch on our website, that is www.worldcybersecurities.com. And another course that we are bringing in the bucket list is certified course on Introduction to Cyber Laws and Cyber Security. So these two are separate courses. That is, first one is certified course on Introduction to Cyber Laws, and another one is certified course on Introduction of Cyber Securities. So under the cyber security regime, we'll be just offering various course module where we'll be covering the basics of the cyber security, cyber crimes and e-attacks, investigation process, and various other cyber-related statutes. So for that as well, I'm sharing a small message, so you can definitely go and give it a read about that. I hope, Megha, my message is visible to everyone. Yes, Miss Pakhi, it is. Yeah, thank you very much for the confirmation. So that's all from my side. Now, I would really like to take Megha to go ahead with it. Is she here? Megha, you are on mute, dear. Okay, I'm sorry. I was trying to see, but I was on mute. Mr. Deepak, if you allow, may I please ask you a few questions from the audience? Yeah, sure, please. Yeah. So the first question that is from the audience is, can you please give us some insight on drone forensics and cloud forensics? Exactly. So, I mean, that's really good. Drone or this cloud is the future itself. That comes under emerging cyber security and cyber perspective. ड्रोन किस पर्टिकुलर डिवाइस, किस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का है, ड्रोन के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ड्रोन की कनेक्टिविटी अगर देखी जाए तो मोबाइल अगर उसमें यूज़ किया गया है, या फिर मोबाइल में ड्रोन में बेसिकली जो भी स्टोरेज यूज़ किया गया है उसके कंटेंट को रिट्रीव करना, ये सारी चीज़ें बेसिकली डिफाइन करती हैं। और इसके लिए जब ये अटैक हुआ था जम्मू वाला रिसेंटली एयरफोर्स का, और भी 2-3, तो उसमें कुछ गाइडलाइंस बनाई गई थी अपडेट्स को लेकर के। बट फॉरेंसिक की अगर बात की जाए, there are certain data sets which is available on internet of data sets like is a memory of these drones. You can dump those drones memory and you can study with any open source tool. You can use autopsy, you can use any something and you can check. Point number 2, Interpol की guideline भी है, freely available है कि drone forensics पे आप कैसे study कर सकते हो. That is again one, it's not a very sci-fi but it's very important to know कि इंडिया में किस तरह के ड्रोन्स आ रहे हैं, किस तरह के इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, वॉलेटाइल इंफॉर्मेशन कैसे हम गैदर कर सकते हैं. दैट इज वन. कमिंग टू सेकंड थिंग लाइक क्लाउड वन, क्लाउड इज द फ्यूचर. आजकल सारी चीज क्लाउड पे मूव हो रही है एंड क्लाउड इज नॉट लाइक थिंग. सो क्लाउड पर्सपेक्टिव जो डेटा प्रिवेसी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड नो अबाउट कंट्री स्पेसिफिक लॉज आर देयर in basically how these things are there. But coming to intelligence and information in a security manner or in a forensics manner, we should know the models like hybrid model है या कैसे मॉडल्स हैं, PaaS, SaaS, HaaS जो भी हैं. क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी जैसे एज्योर है या फिर कोई भी हम अमेजन वेब सर्विसेज हैं, इनकी फंडामेंटल्स क्या हो सकती हैं, सर्विसेज क्या क्या रन होती हैं, सर्विसेज की कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, लॉक्स कितने क्रिएट होते हैं. सो ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन की जाती हैं. तो जब ये है तो दैट इज द थिंग. सो क्लाउड अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर स्टडी और टू फाइंड इन दिस एरिया. You're on mute actually.
Oh, I'm really sorry. My next question is that how to track VoIP calls and foreign number chats through WhatsApp? Look, it's a very common question, very simple thing. First of all, not every VoIP can be traceable or trackable. We should know about the fundamental, like simply when you make a call through one number to other number in a GSM perspective, these are the things. But VoIP call again made through this IP-based calls, internet-based calls. So आप खुद समझिए कि मैं इंडिया में हूँ, मैंने जियो से कुछ आईपीज ले ली हैं और मैंने उस आईपी को एक वीओआईपी कल्चर दे दिया है कि एक एप्लीकेशन डाल दी है कि सारी कॉल्स अगर आती हैं तो मेरे सर्वर के थ्रू होके जाएं। तो ये मैंने उन नंबर को एम्बेड कर दिया है उन आईपी से। तो अगर कोई नंबर है +1 समथिंग करके, तो हमें मालूम है कि यह नंबर बेसिकली डिफाइंड और डिजाइन बाय सम सॉर्ट ऑफ ओपन सोर्स एपीके, ओपन सोर्स और गूगल में अवेलेबल रहते हैं और अक्सर हैकर्स क्रिमिनल्स यूज करते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिर्फ नंबर को ट्रैक करना टफ होता है। नंबर को ट्रैक करने के लिए जो हम वेरियस ओसेंट या क्लिक जैकिंग या फिर नंबर को ट्रैक करके पता करना कि यह किस सर्विस प्रोवाइडर का है, उस कंट्री के माध्यम से उस डेटा का इंफॉर्मेशन लेना, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं जो हेल्प कर सकती हैं। डायरेक्टली देखा जाए तो किसी नंबर को ट्रैक करना इतना ईजी नहीं होता, इसलिए हम कोशिश करते हैं किसी और एंगल से लिंकेजेस स्टैब्लिश करना। क्या पता हम कोई कैनरी टोकन या कोई क्लिक जैकिंग चीजें भेज करके, या व्हाट्सएप में हम लोग यूजर्स लोग इंटरसेप्ट के लिए कुछ ऐसे टूल्स यूज करते हैं जहाँ पे अगर यूजर ने कॉल को उठा लिया तो कुछ आईपी मिल जाती हैं, पर वहाँ पे भी लोग वीपीएन यूज करते हैं। तो things are there, मतलब these are the things which can help in a practical manner. पॉइंट नंबर 2, ये चीजें रिफ्लेक्ट नहीं होती सीडीएस क्योंकि वीआईपी कॉल्स होती हैं, तो कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं फाइंड करने के लिए। तो आईपीडीआर इज अ गुड इन्फॉर्मेशन टू ट्रैक। आईपीडीआर में भी चीजें चेक की जा सकती हैं फाइंड करने के लिए। सो वेरियस इंडिकेटर्स आर देयर फॉर द सेम थिंग। Thank you so much for answering this one. My next question is that what is blockchain technology and crypto coin transfer tracing methods? देखो सिंपल सा है, you can't compare with both because these are, of course, they're interlinked. And when you talk about, if you heard about a Merkle tree, I mean that generally use, if you heard about mixers, when you track any blockchain address, when you track any crypto perspective things, so usually what is happening here, publicly the information, publicly explorers, publicly OSINTers are there which can give some information of any specific address, correct? So crypto perspective things are also there, and of course the technology is there which is helping in various areas, not only the crypto area. Crypto is a one subset of that particular blockchain, you can say that. So things are there. So as of now, I just say one thing, like if anybody exploring something in crypto area, so try to read some content or read some papers of chain analysis, you can say, or you can read about Elliptic, you can read about CipherTrace. They have a real ground homework or reality where they have dismantled cyber terrorism or money laundering cases, like how they found or they link or they get those information in a legal or in a investigation in a forensics manner. So that is, this is somehow important. अभी कुछ रिलीज भी हुआ है कुछ दिन पहले for the same thing. Yes, thank you for answering this one too. And my next question is that can you explain about social media forensics? Look, you can add anything, any subject. आजकल आप कुछ भी किसी चीज के आगे फोरेंसिक ऐड कर दो तो वो एक ट्रेंड बन जाता है, नो डाउट। आप खुद सोचिए सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया मतलब जो भी हमारी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं या कोई भी फोरम्स हैं उनकी फोरेंसिक करना, या कोई भी सोशल नेटवर्किंग डोमेन या एप्लीकेशन, जैसे फेसबुक वेबसाइट भी है, फेसबुक एप्लीकेशन भी है, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, web.telegram.org, ये भी एक URL है जहाँ पे है। तो हम जब इन चीजों को स्टडी करते हैं, इनको हम एक फोरेंसिक मैनर में कंटेंट को डंप करते हैं, इनको हम किसी केस में प्रॉपरली एक मेथड से, एक स्टैंडर्ड मैनर में while dumping and creating hashes and linkaging with any specific case in a manner, then that is the forensics. But again क्वेश्चन ये है कि हम जिस सब्जेक्ट का फोकस कर रहे हैं उसके बारे में हम करें। तो सोशल मीडिया में यू टेक वन एग्जांपल लाइक इंस्टाग्राम बेस्ड, तो किसी ने इंस्टाग्राम पे कोई एब्यूसिव या फिर सीपी या चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट भेज दिया है, तो अब सिंपल है कि व्हेन यू टेक अ स्क्रीनशॉट, सो दैट इज नॉट कंसिडरेबल। सिंपल, आप स्क्रीनशॉट
कोई भी मॉर्फ करके क्रिएट करके लगा सकता है। सो हम जब भी कोई डेटा लेते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, हम जब भी चीजें प्रोड्यूस करते हैं, तो for example, like evidence check, we do have 65B there, so we have to properly produce a substantially perspective, like कि जिसने IPDR भेजा है वह बीच में टैम्पर नहीं हुआ है। हमने जब कंटेंट को डंप किया था तो हमने पेज को HTML में सेव किया है, उसकी हैश वैल्यू क्रिएट की है। ये कुछ पॉइंटर्स हैं, तो अगर ये आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं तो there is no need of any tool, there is no need of any IT act or any something. You just tell that the process which I use, that is the standard and that is not tampered. So what you have done, you dump that thing and you created a HTML का hash value create कर लिया. You did what? You even dump in a PDF format, इसको export कर लिया. So things are there. But question यहाँ पे ये है कि जैसे अभी एग्जाम्पल दूं, जैसे बुल्ली बाई केस है तो कंटेंट हट चुके हैं इंटरनेट से. And let me share one case which may be really helpful. It is about the GitHub case. Can you see my screen? Yeah. Yes. Okay, so this is just 1 second. There's a GTU data leak case. It's a real case basically, and where it was mentioned about the case detail which is about the Ahmedabad city itself. क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो डोमेन है, ये 3 डोमेन दिख रहे हैं आपको, gtuexam.rf.gd, gtuhacksex.com और थर्ड लिंक बेसिकली. आप जब थर्ड लिंक चेक करेंगे you will get that कि something.something.gtu.com/something. तो यहाँ पे जो मेन डोमेन है वो ये है basically. So this is a page which has been created, a subdomain basically you can say, and this is the content. जब डेटा मांगी जाती है तब जाके चीजें निकलती हैं कि यस ये कंटेंट होस्ट किया गया था इस पे. ओपन सोर्स के माध्यम से यह वेबसाइट कहाँ पे होस्टेड है, इसकी कितने लिंकेजेस हैं, यह वेबसाइट किस कंट्री में है, उस कंट्री का एमिलिटी कैसे है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है नहीं दे सकता है. अगर उसकी रेपो चेक की जाए उस वेबसाइट में किसने क्रिएट किया था, किस डेट को क्रिएट किया था, उसके कोड को चेक किया जाए कि उसमें कितने कंट्रीब्यूटर थे. ये मैं अब गिटहब की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है. तो दीज आर द इंडिकेटर्स एंड फॉरेंसिक्स आर्टिफैक्ट विच यू कैन गेट फ्रॉम इंटरनेट. स्क्रीनशॉट लिया गया, डंप किया गया प्रॉपरली, और हैश वैल्यूज भी क्रिएट किए गए, कुछ बंदे भी मिले, उनका भी देखा गया क्या कंटेंट है. कंटेंट को उन्होंने फिर कहीं और लोड किया, कहीं और डिलीट किया. ये जो दिख रहा है हैंडल ANOXDLEO करके, यह इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज अंडर दैट रेपोजिटरी. कमिट क्या किया, गिटहब के हिसाब से क्या हुआ, क्या इन्फॉर्मेशन मिली, यूजर को रिवर्स ट्रैक किया गया OSINT के माध्यम से, क्योंकि आप समझिए कि OSINT भी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज वेल जो लीड दे सकता है. तो यह यूजर के बारे में ये मिले कि ये लिंक्डइन भी है, ड्रिबल भी है, फ्रीलांसर में भी, बिहेंस में भी है. अगर हम लिंक्डइन डेटा नहीं दे रहा है, क्या पता ड्रिबल दे सकता है, फ्रीलांसर दे सकता है. उनके डेटा को स्टडी करो, उनको प्रूफ करो. फिर बंदा का सोर्स कोड स्टडी किया गया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से निकला ये करके, इंस्टाग्राम प्रोफाइल में लाइक दिस, एंड उसमें कॉमन फ्रेंड में नील चौकसी का भी नाम आ गया. ये इंफॉर्मेशन है डिटेल्स के बारे में. SDR डेटा मंगाया, गिटहब से इनके बारे में डेटा मंगाया, रिट्रीव किया 91 CRPC भेज करके, कुछ IPs मिली, उस IP को फाइंड किया गया कि बेसिकली क्या है. रशियन वेबसाइट यूज किए जा रहे हैं फेक डोमेन के नाम से, ईमेल IDs लिंक थी, मोबाइल नंबर लिंक थी उनसे, IPDR डेटा ये मिला, लास्ट लाइन जो मेंशन किया गया. So things are there. So sometime it's not sometimes it's not like you have to share everything with the session or in public domain, because क्या पता किसका दिमाग घूम जाए और he can evade those things, he can misuse those things for things. So we have to show only those things which is required. To answer here, any LEA, any legal fraternity or any OSINT or any forensicator, any young youth, he or she should have multiple skill set to know at least fundamentals कि इसका ये क्या है. अब मैं नहीं बोलूँगा कि आप कोडिंग करो, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि हाँ एक एप्लीकेशन के लिए ये कोडिंग यूज की जाती है. देन यू कैन कॉन्टैक्ट योर रिसोर्सेज दैट कि कैन यू हेल्प मी इन दिस वन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ऑल. लीगल है तो आई कैन कॉल टू माई लीगल पर्सन, यार कैन यू टेल मी व्हाट IT एक्ट, व्हाट IPCs कैन आई कैन यूज इन दिस केस. क्योंकि अभी जैसे बुल्ली बाई केस है तो हर स्टेट ने अपने अपने अलग अलग IPCs IT एक्ट में कंसर्न किए हैं. किसी ने ये, किसी ने ये, किसी ने ज्यादा लगा दिए. तो ये हो गया टर्म. फॉरेंसिक लेवल पे किसी ने गिटहब को भेजा, किसी ने यूजर के लैपटॉप से डेटा निकाला, यू गॉट अ पॉइंट. किसी ने गूगल पे आर्काइव वेब आर्काइव से डेटा निकाला जो पुराना डेटा है. सो एंगल्स आर देयर. सो हाउ क्लियरली, हाउ सिंपली एंड हाउ स्टैंडर्ड मैनर में आप प्रोड्यूस करते
I mean mention करते हो, report करते हो और understandable है तो no doubt these things can work. This is one case which was there. Yes, thank you so much. Thank you so much. And the next and the last question that I have for you is that can you please share some open source tool for email investigations? डेफिनेटली मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी एक ओसेंड का था, start.me में यू कैन गूगल start.me/ यू कैन गूगल ईमेल फॉरेंसिक ईमेल टूल. देखो सिंपल ईमेल इन्वेस्टिगेशन के लिए दो चीजें हैं. जैसे मैं बात करता हूँ जीमेल की, तो ये HTTPS बेस्ड ईमेल होते हैं. अगर मैं आउटलुक की बात करता हूँ तो इनका खुद का एक फोल्डर OST PST फाइल बनती है सिस्टम पे, और हम जो टूल यूज करते हैं जैसे सिस टूल है, काफी ऐसे फ्री टूल हैं जो इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज की जाती है. सो दीज आर थिंग्स. अब ईमेल को पब्लिक डोमेन में रिवर्स ट्रैक करना है तो हमने कैसे कुछ ओपन सोर्स यूज किया कि यह जीमेल आईडी किस डेटाबेस लीक्ड में मिली है, जैसे haveibeenpawned.com करके है, या फिर शोडान में, या फिर हमने गूगल पे नॉर्मल एस्ट्रिक लगा करके गूगल डॉक के माध्यम से सर्च किया. तो वेरियस मेथड्स आर देयर. देयर इज नो स्टैंड लोन वन टूल और वन थिंग, क्योंकि कॉमन सेंस है. आप किसी नंबर को इंटरनेट से ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट का वो डेटा जो है वो ऑपरेटर के पास है. तो आजकल टूल जो है नेट पे आ जाता है कि यू कैन लोकेट एनीबॉडी. वो साइंस है कि अगर उस एप्लीकेशन में जीपीएस इनेबल्ड है तो ऑफ कोर्स ये डेटा आपको फेच कर सकते हो. क्लिक जैकिंग में अगर ब्राउजर में कुछ एक्सप्लॉइट्स आपको मिल सकती है. तो साइंस यही है कि एटलीस्ट आप पहले जानो कि वो डेटा कहाँ मेंटेन होता है और कहाँ से डेटा रिट्रीव हो सकता है, और वो ऑथराइज्ड बॉडी कौन सी है. इट्स नॉट लाइक मूवी में कि ही डिड गूगल कमांड प्रॉम्प्ट खोला है, he did certain things and he can hack or those things. I hope that is I mean I try to given your. Yes. Are you here? Yes. Yeah. So thank you so very much, Mr. Deepak, for addressing this very timely subject. And it was an honor for all of us to have your guidance on this subject area. And also our lovely audience, thank you so much to all of you for spending your weekend with us when even there was a lot of network issues because of the rainfall and stuff at various areas. Thank you so much for being so engaged and all the time. And also thank you so much to team WCSF and for this wonderful session. Thank you so much all. We had a lot of questions for you, but we have just chosen few limited questions only because of the time constraint. Thank you so much. Thank you so much, Megha and Akash and Paki and all the audience who listened this and जिन्होंने मुझे सुना, at least bear किया मुझे. And if any query on anything related to technical forensics or CTI, cybercrime, you may reach to me anytime through Telegram. And thank you once again, because things are there. We should update ourselves. हमारी youth है, youth ही game changer है society की. I'm happy to see you guys. You are doing a good job through LinkedIn as well. And it's very good to see you, like you are creating a good atmosphere and good vibes as well into not only the area of legal part, even other areas which is required. Thanks once again. Jai Hind. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Mr. Deepak. Jai Hind. Bye-bye. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.